السلام علیکم، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سب کے لیے ایک نیا ناول لائی ہوں۔ اس سے پہلے ایک دعا کروانا چاہوں گی کہ اللہ ہمارے ملک کو ایک اچھا لیڈر عطا کرے جو ہمارے ملک کو صحیح سمت میں لے کر جائے، ہم لوگ بھی ترقی کریں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ اور آج کا ناول ہے تیری طلب میں، رائٹر ہیں اس کی سیوا خان۔ اور تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ ادھر آؤ میرے پاس، میں نے کہا میرے پاس آؤ۔ وہ دھارا تھا اور وہ نازک جان کانپ گئی تھی۔ جبران کاظمی کا یہ روپ اس کے لیے نیا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، جوڑی جسامت، سفید سرخی مائل رنگت، مغرور نقوش، کالے بال جو ماتھے پر بکھر کر اسے مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ کلین شیو پر گہری کالی مونچھیں اس کے رعب و دبدبے میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ اس وقت شراب کے نشے میں بے حال تھا۔ آج اس نے پہلی بار اس گھٹیا چیز کو منہ لگایا تھا۔ اس نے کالی جینس پر کالی ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے اگلے بٹن کھلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کا چوڑا سینہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا براؤن کوٹ زمین پر پڑا تھا۔ خود وہ غصے سے سامنے کھڑی لڑکی کو گھور رہا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ جب اس کے صبر کی حد ہوئی تو وہ خود لمبے ڈگ بھرتا، اس کے سر پر پہنچ جاتا اور بے دردی سے اس کے بال نوچ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتا ہے۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے کراہ نکلی تھی۔ کالی پانیوں بھری آنکھیں شہد رنگ سرخ آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ قدرتی خوبصورت بھرے بھرے سرخ لب کپائے تھے۔ چھوٹا سا ناک تکلیف سے سرخ ہو گیا تھا۔ جبران اس کے خوبصورت نقوش میں الجھتا اپنی پکڑ سخت کرتا ہے۔ چھوڑے مجھے، چھوڑے۔ آنسو اب اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گال پر پھسل گئے تھے۔ جبران کی نظر اس کے چہرے سے پھسلتی اس کی گردن پر جاتی ہے۔ سفید رنگ کی وجہ سے اس کی گردن کی نیلی رگیں صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بکھری حالت میں دوپٹے سے بے نیاز نیلے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے سوٹ میں اس کے سامنے تھی۔ جبران کو عجیب سے احساس نے گھیر لیا۔ وہ جو کل تک نفرت سے اس پر نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتا تھا، اب اس کی طرف یوں مائل ہو رہا تھا۔ جبران، میرا کوئی قصور نہیں تھا، مجھے، وہ بول رہی تھی جب جبران نے جھک کر اس کی گردن کو لبوں سے چھوا تھا۔ وہ کانپ کر رہ جاتی ہے۔ جبران ابھی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر خاموش کروا دیتا ہے۔ میرا حق ہے تم پر پاکیزہ آفریدی۔ جبران کی سرگوشی پر پاکیزہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آخر سب کے سامنے تمہیں طوائف بنا کر لایا ہوں۔ الفاظ تھے یا کوئی سور جو اس کے کانوں میں پھونکا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اس بار اس نے بے دردی سے اس کی گردن پر دانتوں کے دباؤ بڑھایا تھا۔ پاکیزہ اس کی بے دردی پر سسک بھی نہیں سکی۔ اب وہ اس کی شرٹ اس کے کندھے سے کھسکا رہا تھا۔ دور رہو جبران کاظمی۔ پاکیزہ پوری جان سے اسے دھکا دیتی چیخی تھی۔ جبران اس کے دھکے سے اپنے مضبوط جسامت سمیت 2 قدم کے فاصلے پر پیچھے پڑے صوفے پر جا گرتا ہے۔ پاکیزہ کی اس حرکت پر جبران اپنے جبڑے بھینچ لیتا ہے۔ میں طوائف نہیں، آپ بیوی ہوں آپ کی، نکاح کیا ہے آپ نے میرے ساتھ۔ پاکیزہ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ڈر سے کانپ رہی تھی، اب وہ اس کے سامنے غصے سے تن کر کھڑی تھی۔ وہ اپنے گھومتے سر کو سنبھالتا ہوا صوفے کی ہتھی پر ہاتھ رکھ کر سیدھا ہوتا ہے، پھر پاکیزہ کو سر تا پیر دیکھتا ہے۔ نکاح، مائی فٹ، بھاڑ میں گیا نکاح۔ میں نہیں مانتا اس نکاح کو، تم خون بہا میں آئی ہو، ایک طوائف ہو، بس ایک طوائف، اس سے بڑھ کر تمہارا کوئی مقام نہیں۔ پاکیزہ بے بسی سے اپنے لب بھینچ لیتی ہے۔ آنسو ابھی بھی اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کے آنسو دیکھ کر جبران کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تمہارے آنسو میرے دل کو سکون دے رہے ہیں پاکیزہ آفریدی۔ تمہارے بھائی کے ہر اعمال کا حساب تم دو گی۔ جتنی تکلیف میری بہن نے برداشت کی، اس سے دگنی تکلیف میں تمہیں دوں گا۔ سنا تم نے؟ اس کے لفظوں میں کانٹ سی کرچیاں تھی۔ پاکیزہ جانتی تھی اس میں سراسر اس کے بھائی کا قصور تھا جس کا انجام وہ بھگت رہی تھی۔ تم نے مجھے خود سے دور کیا ہے نا پاکیزہ آفریدی، اب خود آؤ گی میرے پاس اور میری گود میں بیٹھو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتا، پاکیزہ اپنی خشک حلق تر کرتی۔ پاکیزہ آفریدی، مجھے میری بات دوسری بار دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ یہ وہی انسان تھا جس کی ایک مسکراہٹ پر وہ اپنا دل ہار گئی تھی، مگر اب وہ کتنا بدل گیا تھا، بالکل بے حس۔ پاکیزہ بے بسی سے اپنے لب کاٹتی نیچے کارپیٹ کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ جبران کے ماتھے پر بلز پڑ جاتے ہیں۔ وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ جبران کسی خیال کے تحت گہرا مسکراتا ہے، پھر ساتھ پڑے ٹیبل سے اپنا فون اٹھاتا ہے۔ کھٹکے کی آواز پر اپنا سر اٹھاتی تو جبران کو مسکراتا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔
اب وہ کسی کو کال ملا کر فون کام سے لگا گیا تھا۔ ہاں ہیلو رامش، کیسے ہو؟ اچھا، تم لوگوں کے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے، جبران پاکیزہ کو سر تا پاؤں دیکھ کر کہتا ہے۔ پاکیزہ کو اس کی بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ بے یقینی سے نفی میں ساحل آتی 2 قدم پیچھے۔ یہ انسان اتنا گرا ہوا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جبران اس کی حرکت پر انگلی کے اشارے سے اسے پاس آنے کا کہتا ہے۔ بتاتا ہوں، پہلے مجھے کچھ کنفرم کرنے دو، پھر میں تمہیں واپس کال کرتا ہوں، وہ کہتے ساتھ ہی فون کاٹ دیتا ہے۔ پھر گہری نظروں سے پاکیزہ کو دیکھتا ہے۔ ہاں تو پاکیزہ آفریدی، میں یا وہ 4؟ آپ کیسے؟ وہ بامشکل بولی تھی۔ میرے پاس آؤ یا پھر، وہ فون لہرا کر کہتا، جس پر وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مشتاق اپنے قدم آگے بڑھا دیتی ہے۔ اس کے قدموں میں واضح لرزش تھی۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر جبران کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ اس کے پاس پہنچ کر سر مزید جھکا لیتی۔ جبران اسے ایک جھٹکے میں کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی یا خود کو سنبھالتی، وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ یہ سب اچانک ہوا تھا۔ اس کے لمس میں شدت تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد گھیرا بناتا اور دوسرے سے اس کے بالوں سے جکڑ لیتا۔ وہ بیچاری چاہ کر بھی اس ظالم کے شکنجے سے نہیں نکل سکتی تھی۔ پاکیزہ کی اکھڑتی سانسوں کا خیال کر اس نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی تھی۔ اب وہ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ رو رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں بھی سوج گئی تھی۔ اس کی شدت پر اس کے سرخ لب خون چھلکانے کی حد تک سرخ لگ رہے تھے، جنہیں وہ ہلکا سا واہ کیے اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ جبران کی آنکھوں میں سرخی اب پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے بالوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کے چہرے پر پھیرتا، پھر اس کے بھیگے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتا۔ پاکیزہ گہری سانسوں سے اپنی آنکھیں مینچ لیتی۔ دور وہ ابھی بھی نہیں ہو پائی تھی کیونکہ اس کی کمر پر ابھی بھی اس کے بازو کا تنگ حصار تھا۔ جبران جو صرف اسے سزا دینے کے لیے اس کے لبوں پر جھکا تھا، اب دوبارہ اس کا دل یہی گستاخی کرنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ ایسا نہ کرتا اگر وہ حواسوں میں ہوتا، مگر اب وہ پھر اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اب کی بار اس کے لمس میں نرمی تھی، جیسے وہ اسے محسوس کر رہا ہو۔ پاکیزہ جو دوبارہ تکلیف کا سوچ کر آنکھیں میچ گئی تھی، اب اس کی نرمی پر چونک جاتی ہے۔ اس بار وہ جلدی دور ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی آنکھیں کھول کر پاکیزہ کو دیکھتا ہے جو آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول گئی تھی۔ دونوں کی آنکھیں ملتی ہیں۔ جبران کی آنکھوں میں خمار اتر آیا۔ وہ پاکیزہ کی کمر کے گرد مزید گھیرا تنگ کرنے لگا۔ چھوڑیں پلیز۔ جبران اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروا دیتا ہے۔ پہلے مجھے میری طلب پوری کرنے دو، وہ اس کے لبوں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ پاکیزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ وہ اس کی قربت پر بے حال ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھکتا، وہ سختی سے اپنے لب دبا جاتی ہے۔ جبران اس کی اس حرکت پر ہلکا سا مسکراتا ہے، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی تھوڑی کو لبوں سے چھوتا ہے۔ اس کے لمس پر ایک بار پھر پاکیزہ کی سانس رکی تھی۔ وہ اس کی تھوڑی کو چھوڑ کر اب اس کی گردن پر جھکا تھا۔ جبران کے ہر لمس پر پاکیزہ کو آگ سا گما ہو رہا تھا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن اس کی جان نکال رہی تھی۔ وہ کانپ کر رہ جاتی۔ جبران اب کی بار دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر کو جکڑ لیتا۔ تم بیوی نہیں طوائف ہو، بس ایک طوائف، اس سے بڑھ کر تمہارا کوئی مقام نہیں۔ وہ جو اس کے لمس میں نہ چاہتے ہوئے بھی کھو رہی تھی، لیکن اس کے کچھ وقت پہلے کے جملے یاد کر کے وہ اذیت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے خود سے دور کرتی ہے۔ جبران اس کی حرکت پر اپنی گرفت ہلکی کر کے ناگواری سے اسے دیکھتا ہے۔ وہ جلدی سے اس کی گود سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جبران اس کی طرف دیکھ کر کھڑا ہوتا ہے اور اسے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اپنی باہوں میں اٹھا لیتا ہے۔ اس کے قدم اپنے بیڈ کی طرف تھے۔ اس کی اگلی کارروائی پر پاکیزہ کے چاروں طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ مزاحمت کرتی سے اپنا آپ چھڑوانے لگ جاتی ہے۔ جبران کاظمی، چھوڑیں مجھے، میں نے کہا چھوڑیں۔ جبران اسے بیڈ پر پٹکتا ہے تو اس کے لفظ منہ میں ہی دب جاتے ہیں۔ تم خاموشی سے اس وقت صرف میری طلب پوری کرو، وہ اسے وارن کرتا اب اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ یا اللہ میں کیا کروں، میں کیسے ان کو روکوں، یہ تو ویسے بھی شراب کے نشے میں ہے، وہ دل میں کہتی بیڈ کے دوسری سائڈ پر کھسک جاتی ہے۔ جبران اپنی شرٹ اتار کر اب بیڈ پر آیا تھا اور باقی جا کے دور کھسکنے کی حرکت اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ وہ غصے سے اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرنا پاکیزہ، اب یہ ممکن نہیں، کہنے کو ساتھ ہی وہ اس پر جھکتا اس کی کمر کے گرد سخت حصار بنا گیا تھا۔ ورنہ میری دی ہوئی سزا تمہاری نازک جان برداشت نہیں کر پائے گی، وہ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھو کر سرگوشی سے کہتا۔ آپ کی قربت سے بہتر سزا ہے، مجھے وہ قبول ہے، پاکیزہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ ٹکا کر اسے خود سے دور کرتی ہمت سے بولی۔ اس کے الفاظ سن کر پورے کمرے میں جبران کا جاندار قہقہا گونجا تھا۔ او پاکیزہ آفریدی، یہ ناممکن ہے۔ جبران ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیتا ہے، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آتی
اس کے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتا ہے، کیونکہ میری جان تمہاری سزا بھی میری بے انتہا قربت ہے۔ اس کی بات پر پاکیزہ خود میں سمٹ جاتی ہے، جبکہ جبران اب اس پر جھک کر اس کے لبوں کو قید کر گیا تھا۔ وہ اپنے لمس اور شدت سے خاموش کروا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس پر قابض ہو گیا تھا۔ پاکیزہ اپنی گردن سے اٹھتی تکلیف کو آنکھیں میچ کر برداشت کر رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی اب اسے طوائف کے درجے پر فائز ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اگر وہ بیوی مان کر اپنے حقوق مانگتا تو وہ دے دیتی، پر وہ اس سے نکاح کرنے کے بعد اسے اپنے گھر طوائف کی حیثیت سے لایا تھا۔ اس کے لبوں نے ایک بار پھر اللہ کو پکارا تھا۔ وہ کیسی بدنصیب لڑکی تھی جو اپنی محبت کے ہاتھوں رسوا ہوتی، اپنوں کے کیے کی گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ اچانک جبران کی پکڑ اس پر ہلکی ہوئی تھی۔ وہ کسی احساس کے تحت اس کے بھاری چوڑے وجود کو خود سے دور دھکیلتی۔ جیسے ہی اس کا رخ سیدھا ہوتا پاکیزہ بے ساختہ ہی سکون کا سانس بھرتی، کیونکہ وہ سو چکا تھا۔ وہ تشکر سے دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی، پھر اس کے پاس سے اٹھ جاتی ہے۔ زوہان بھائی کہاں ہیں آپ؟ اماں سائیں آپ کو مہندی کی رسم کے لیے بلا رہے ہیں۔ وہ کالے رنگ کے ستاری والے شرارے شرٹ میں تھی، گلے میں اس نے پیلے سفید رنگ کا شیشے والا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں موتی اور گلابوں کے گجرے تھے، جبکہ ماتھے اور کانوں میں بھی موتی اور گلاب کی جوڑی تھی۔ کالے بال کھلے تھے جن کو سٹیپ کٹنگ میں کاٹا گیا تھا۔ اس کا چہرہ میک اپ سے پاک تھا، وہ سادگی میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ زوہان بھائی، وہ دوبارہ پکارتی زوہان کے کمرے کے دروازے کھول کر باہر آ جاتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے پاکیزہ، کیوں سار کھا رہی ہو؟ نیچے ہی آ رہا تھا میں۔ وہ باہر آتے ہی پاکیزہ پر چڑ دوڑا تھا۔ پاکیزہ کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں۔ آج کے دن اسے بھائی کی ڈانٹ کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سوری بھائی، میں بس اماں سائیں کے بکواس بند کر اور جا یہاں سے، میں آ رہا ہوں۔ زوہان اس کی بات سن کاٹ کر اسے یہاں سے جانے کا کہتا ہے، جس پر وہ چہرہ جھکا کر واپس باہر کی طرف چل پڑتی ہے۔ چودھری شجاعت افریدی کی 2 اولادیں تھیں، زوہان افریدی اور پاکیزہ افریدی۔ ان کو اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا، وہ جان مارتے تھے اس پر، لیکن بیٹی کو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ بیٹیاں ہمیشہ گھر میں بدنامی لے کر آتی ہیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی ان کی بیوی ان کی یہ سوچ نہیں بدل سکتی تھی۔ گھر میں پاکیزہ کو صرف اس کی اماں سائیں ہی پیار کرتی تھی، ورنہ باقی سب تو صرف ڈانٹتے ہی تھے۔ زوہان کی شادی دوسرے علاقے کے چودھری رحمان کاظمی کی بیٹی کے ساتھ ہو رہی تھی، عروسہ کاظمی۔ ان کی بھی 2 اولادیں تھیں، عروسہ کاظمی اور جبران کاظمی۔ چودھری رحمان کاظمی اپنے دونوں بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کے بچے چھوٹے تھے جب ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے وہ خود ہی اپنے بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیتے تھے۔ جبران کاظمی بالکل اپنے باپ کی شبیہ تھا، جبکہ عروسہ کاظمی اپنی ماں کی طرح سانولی مگر خوبصورت نقوش کی مالک تھی۔ زوہان کو عروسہ کے سانولے رنگ کی وجہ سے اس رشتے سے اعتراض تھا، جس پر چودھری شجاعت نے اسے زمین جائیداد کی لالچ پر بہت مشکل سے منایا تھا، کیونکہ چودھری رحمان کاظمی چودھری شجاعت افریدی سے زیادہ امیر تھے۔ چودھری شجاعت افریدی نے ان کی سانولی بیٹی کا رشتہ بھی صرف زمین جائیداد کی وجہ سے ہی مانگا تھا۔ آج زوہان کی مہندی تھی، جس پر پورے علاقے کے لوگ ان کی حویلی میں اکٹھے تھے۔ وہ اداس چہرے کے ساتھ اپنی اماں سائیں کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اماں سائیں جو مہمانوں سے باتیں کر رہی تھی، پاکیزہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ کیا ہوا پاکیزہ؟ ان کے پوچھنے پر وہ اپنی ڈبڈبائی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھتی ہے، پھر جلدی سے مسکرا دیتی ہے۔ کچھ نہیں اماں سائیں، آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا بس۔ اور وہ بھائی آ رہے ہیں کیا؟ میں نے انہیں پیغام دے دیا ہے، وہ نام آنکھوں سے مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ اس کی اس معصومیت پر عریج بیگم کا دل کیا سامنے کھڑی اپنی نازک بیٹی کو اپنے دل میں کہیں چھپا لیں کہ پھر اسے کوئی دکھ نہ دے سکے۔ بچپن میں ہی اس نے خود پر نفرت جھیلی تھی، کبھی باپ اور کبھی بھائی کی۔ صرف اماں سائیں ہی تھی جو اسے پیار کرتی تھی، وہ بیچاری تو اپنا قصور بھی نہیں جانتی تھی۔ عریج بیگم کیا بتاتی کہ اس کا قصور ہی بیٹی پیدا ہونا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی زوہان آ گیا تھا، پھر مہندی کی رسم شروع ہو گئی تھی۔ سب لوگ زوہان کو مہندی لگا رہے تھے۔ پاکیزہ اپنی دوست نائلہ کے ساتھ ایک سائڈ پر مہمانوں کی طرح بیٹھی تھی۔ نائلہ اسٹیج سے نظر ہٹا کر پاکیزہ کو دیکھتی، جو رات کی تاریکی میں اپنی سادگی کے باوجود چاند کی مانند چمک رہی تھی۔ باقی یار تم بھی جاؤ، اپنے بھائی کو مہندی لگاؤ، آخر وہ تمہارا اکلوتا بھائی ہے۔ نائلہ کی بات پر پاکیزہ کسی سوچ سے نکل کر اسے دیکھتی ہے۔ سنو لڑکی، تم آج کے دن اپنے منحوس شائع کو میرے بیٹے سے دور رکھنا، اور خاص کر اپنے ہاتھوں سے میرے بیٹے کی شگن کی مہندی کو مت چھونا۔ پاکیزہ کو آج صبح کی اپنے بابا سائیں کی بات یاد آتی ہے، جیسے یاد کر کے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ نہیں، اصل میں مجھے مہندی سے الرجی ہے، اس لیے میں بھائی کو مہندی نہیں لگا سکتی، وہ ہنس کر کہتی ہے، جس پر نائلہ بھی ہنس کر سر جھٹکتی۔ وہ بچپن سے پاکیزہ کی اچھی دوست تھی، پاکیزہ کے نہ بتانے پر بھی وہ سب جان لیتی تھی، پر پھر بھی اس کی جھوٹی مسکان کا بھرم رکھ لیتی تھی۔ آج بارات تھی، سب لوگ بارات کے لیے تیار تھے،
चौधरी शुजात अफरीदी अपनी बेगम के साथ खड़े थे। आज अपनी बेटी को भी बुला लेना, वो हमारे साथ गाड़ी में जाएगी। चौधरी साहब की बात पर अरीज बेगम हैरत और बेयकीनी से उन्हें देखती है। क्या आप सच कह रहे हैं? मेरा मतलब आपने कहा था कि पाकीज़ा साथ नहीं जाएगी। हाँ कहा था, पर मजबूरी है। सब जानते हैं कि यह मनहूस मेरी बेटी है, इसलिए इसका होना ज़रूरी है। इनकी बात पर अरीज बेगम को अफसोस हुआ था। ऐसे मत कहा करें साईं, वो आपकी बेटी है। अपनी बेगम की बात पर वो दांत भींच लेते हैं। यही तो दुख है, मैं तो इसी वक्त इस बदनामी को मार देता जिस दिन मुझे पता चला था कि मेरे घर बेटी पैदा हुई है, लेकिन फिर सिर्फ तुम पर तरस खाकर मैंने इसे जिंदा रहना दिया। चौधरी साहब की बात पर इन्हें 20 साल पहले का वो दिन याद आया जब पाकीज़ा पैदा हुई थी। साहब, खुदा के लिए मेरी बच्ची को छोड़ दें, मैं ऐसे छुपा लूंगी, कभी आपके सामने नहीं लाऊंगी। खुदारा मेरी बच्ची छोड़ दें, इसकी जान बख्श दें। ये मेरे जुड़े हाथ देखें चौधरी साहब, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ, मेरी बच्ची मुझे दे दे। वो इनके सामने गिड़गिड़ा रही थी। चौधरी साहब जबड़े भींच अपनी बीवी को देखते और कभी अपने हाथों में उठाई गुलाबी गुड़िया को जो अपनी काली मोटी मोटी आंखों से उन्हें देख रही थी। इस बच्ची की आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि इनका दिल कुछ पल के लिए नरम पड़ा था, लेकिन फिर वो अपना सर झटक कर नफरत से इसे अरीज बेगम को थमा देते। वो अपनी बच्ची को पाते ही अपने सीने से लगा गई थी। अब अपने आंसू साफ करती पाकीज़ा के कमरे की तरफ कदम बढ़ा लेती हैं। दरवाजे पर पहुंचकर वो गहरा सांस भरती, फिर अपने मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाकर दरवाज़ा खोलती हैं। वो सफ़ेद रंग की शलवार कमीज में औंधे मुंह बेड पर लेटी थी। अरीज बेगम दरवाजे पर हल्की सी दस्तखत देती, जिस पर पाकीज़ा हड़बड़ाकर सीधी होती बेड से खड़ी हो जाती है। फिर अम्मा साईं को देखकर सुकून का सांस लेती है। अम्मा साईं, आप यहाँ? वो अब अपना दुपट्टा सेट करके लेती नंगे पाँव अपनी अम्मा की तरफ कदम उठा रही थी। अरीज बेगम की बेसाख्ता नज़र इसके गुलाबी पैरों पर जाती है। जिस पैर पर वजन डालकर वो कदम उठाती थी, वो पाँव कुछ पल के लिए सफ़ेद हो जाता था, फिर जैसे ही वो उठाती वो फिर से गुलाबी हो जाता। वो अपनी बेटी के नाजुक सरापे को देखती हुई अब उसका चेहरा देखती है। वो हल्का सा मुस्कुरा रही थी। गाल मामूल की तरह सुर्ख थे और लबों का रंग खून छलकाता सुर्ख था। वो सादगी में भी बहुत खूबसूरत थी, पर उसका नसीब, इस बात पर अरीज बेगम की आंखें नम हुई थी। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करना, उसे बेहद मोहब्बत करने वाला शोहर अता करना जो उसकी तमाम एहसास कमतरी को ख़त्म कर दे और मलका बना कर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वो गीली सांस अंदर खींचकर अपनी आंखें साफ करती है। अब वो इनके सामने परेशानी से खड़ी पूछ रही थी। वो नफी में सर हिलाती इसका माथा चूम लेती हैं। कुछ नहीं पाकी, तुम जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारे बाबा साईं का हुक्म है कि तुम भी चलोगी। अम्मा साईं की बात पर इसका मुंह खिल जाता है। वो बेयकीनी से फिर बेयकीनी क्या खिलखिलाहट में बदल जाती है। क्या वाकई अम्मा साईं? वो खुशवतीन के गले लग जाती है। निकाह हो चुका था, बस अब रुखसती की तैयारी चल रही थी जब जुहान सबसे माजरत करता स्टेज से नीचे उतर आता है और वॉशरूम्स वाली साइड पर आ जाता है। उसे मुसलसल कॉल आ रही थी। वो अपनी शेरवानी की जेब से फ़ोन निकालता तो सुकून का नाम जगमगा रहा था। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फ़ोन उठा लेता है। आगे से कोई गुस्से से बरस रहा था। राहत, रिलैक्स यार रिलैक्स, ये शादी सिर्फ मैं बाबा साईं की वजह से कर रहा हूँ। सुकून तो मेरा तुम्हारे पास है यार, तुम्हारे अलावा मैं कैसे किसी के साथ खुश रह सकता हूँ। वो बड़ी दिक्कत से कह रहा था। आगे से फिर कुछ कहा गया। आज कैसे? आज मैं नहीं आ सकता यार, समझा करो। नहीं नहीं, मैं इस काली में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। क्या काली? पीछे से भारी आवाज आई थी। वो घबराकर फौरन से पलटता जहां जबरान काज़मी अपनी वजाहत समेत खड़ा माथे पर बल डाले उसे देख रहा था। जोहान अफरीदी फौरन से फोन बंद करके वापस जेब में रखता है। और वो काली शलवार कमीज की बात कर रहा था। मेरा मुलाजिम कल के लिए मेरी काली शलवार कमीज का कह रहा था, जिससे मैंने उसे कहा कि मुझे काली में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसकी बात पर जिब्रान बस सर हिला देता है, लेकिन माथे के बल वैसे ही थे। वो एक नज़र में अगले बंदे के अंदर उतरने की सलाहियत रखता था। इससे पहली नज़र में ही जोहान अफरीदी कुछ खास असर नहीं आया था। वो यूरोप में था जब इसके बाबा साईं ने उसकी बहन का रिश्ता कर दिया, ये कहकर के लोग अच्छे हैं परखे भाले हैं। ठीक है, अब चल, रुखसती का वक्त हो रहा है। जबरान काज़मी के सपाट लहजे पर वो सर हिलाता आगे बढ़ता है। जोहान अफरीदी, मेरी बहन की आंखों में एक आंसू भी नहीं आना चाहिए। वो जबरान काज़मी की बहन है, जिसकी जान उसकी बहन में बसती है। वो वार्निंग देते लहजे पर जोहान अपना हलक तैर करता है। वो डरता नहीं था किसी से, पर सामने वाला का रौब व दबदबा इसे हलक तैर करने पर मजबूर कर गया था। जोहान अफरीदी खुश शक्ल और नॉर्मल कद का मालिक था, जबकि जबरान काज़मी मगरूर, नकूश, चौड़ी जिसामत और 6 फुट से निकलता कद, जिसकी वजह तो तमन्नत अगले बंदे को जगा देती। सबसे वाज़ेह इसकी शहद रंग आंखें थी जो सामने वाले का अंदर तक एक्सरा करती थी।
ज़ुहान बस अस्बात में सर हिलाता वहाँ से निकल जाता है। जिब्रान वहीं खड़ा गर्दन मोड़ कर इसे जाते देखता रहा। बाबा साईं की तसल्ली के बावजूद इसे तसल्ली नहीं हो रही थी। वो गहरा सांस भरकर वापस हॉल की तरफ बढ़ जाता है। पाकीज़ा को अपनी नई भाभी अरूसा बहुत प्यारी थी। वो नाजुक सरापे वाली खूबसूरत नकोश वाली लड़की थी जो सुर्ख लहंगे में हल्की ज्वेलरी और हल्के मेकअप के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। इसका निकाह ब्राइडल रूम में हुआ था। स्टेज पर साथ बिठाने का रवाज यहाँ नहीं था। पाकीज़ा मस्टर्ड रंग के लहंगा कुर्ती में थी जिस पर कहीं कहीं मोतियों का हल्का सा काम था। इसने मस्टर्ड लहंगे पर मैरून दुपट्टा गले में लिया था। बाल खुले थे जबकि चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था। वो बहुत दिल से तैयार हुई थी और हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। बाहर से पैगाम आया था कि सब लड़कियां कुछ देर के लिए बाहर चली जाएं क्योंकि अरूसा काज़मी के भाई ने उससे मिलना था। सब बाहर जा चुकी थी। पाकीज़ा भी उठकर जाने लगी कि अरूसा इसका हाथ पकड़ लेती है। तुम बैठी रहो पाकीज़ा, मैं तुम्हें अपने भाई से मिलाना चाहती हूँ। अरूसा की धीमी आवाज में कही गई बात पर पाकीज़ा बौखला जाती है। नहीं भाभी साईं, आप उनसे मिलने मैं बाहर। पाकीज़ा वो बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे, बैठ जाओ। इतने अरसे में अरूसा पाकीज़ा को इतना तो जान गई थी कि वो बहुत डरपोक और मासूम थी। जिब्रान हल्की सी दस्तक के साथ कमरे में दाखिल होता है। बेसाख्ता दोनों ने नजर उठाकर जिब्रान को देखा था। सफेद रंगत की कलफ लगी शलवार कमीज पहने, स्किन शाल ओढ़े और स्किन ही पिशावी चप्पल पहने वो वजाहत का शाहकार लग रहा था। जिब्रान अपनी बहन को देख रहा था जो सिर्फ लहंगे में दुल्हन बनी बैठी थी। ना जाने कब इतनी बड़ी हो गई थी। वो जो कल तक अपने गुड्डा गुड्डी की शादी करती थी अब खुद इसके काबिल हो गई थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। जिब्रान नम आंखों से मुस्कुराता फिर इसकी तरफ कदम बढ़ा देता है। इसकी नजर अब इसके पहलू में बैठी लड़की पर गई जो सर झुकाए अपने हाथ मसल रही थी। अरूसा इसकी नजरों का ताक़ुब करती फिर मुस्कुरा देती है। इससे मिले भाईजान, ये मेरी मासूम डरपोक सी नई दोस्त पाकीज़ा अफरीदी। जिब्रान इसका पूरा तारुफ सुनकर उसे पहचान गया था। ये जरूर ज़हान अफरीदी की बहन होगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा सर झुकाए ही सलाम करती है। इसकी इस सदा पर वो मुस्कुरा देता फिर सलाम का जवाब देता। भारी मगर धीमी आवाज में वो जवाब सुनकर हिम्मत से सर उठाकर देखती। वो पूरी शान से खड़ा मुस्कुराता हुआ ऐसे ही देख रहा था। इसने पहली बार ऐसा खूबरू मर्द देखा था जिसकी मुस्कुराहट इतनी शफीक थी। इसके दिल को कुछ हुआ। जिब्रान इसकी काली आंखों में देख रहा था जैसे वो बार बार झपक रही थी। वो नाजुक सी लड़की प्यारी थी, जिब्रान ने एक नजर में मान लिया था। अरूसा उठकर अपने भाई से मिल रही थी। कुछ देर बाद रुखती हो गई थी। घर आते ही सब दुल्हन को लिए इसके कमरे में चले गए सिवाय पाकीज़ा के, क्योंकि बाबा साईं का हुक्म था कि पाकीज़ा ज़ुहान के कमरे में नहीं जाएगी। इसलिए पाकीज़ा सीधा अपने रूम में आई थी। अब वो कपड़े तब्दील करके अपने बेड पर लेट गई थी। इसे सच में नई भाभी बहुत पसंद आई थी। वो आंखें बंद करती एक खूबरू सा नौजवान इसकी आंखों के पर्दे पर लहरा जाता जिसकी घनी मूंछों तले लब मुस्कुरा रहे थे। पाकीज़ा घबरा कर आंखें खोल लेती है। धड़कनें हद से सवा हो गई थी। इसे इस आदमी का ख्याल क्यों आया? वो इस कश्मकश में घबराती कब सो गई उसे पता ही न चला। अगले दिन वलीमा था, सब आए थे। आज के दिन भी अरूसा ब्लू मैक्सी में बहुत प्यारी लग रही थी। ज़ुहान भी झूठी मुस्कुराहट सजाए उसके बराबर खड़ा था। वो साथ में प्यारे लग रहे थे। पाकीज़ा ग्रे रंग की कैपरी और लॉन्ग शर्ट पर वाइट दुपट्टा लिए हुए थी। आज भी वो हल्का सा तैयार हुए बहुत प्यारी लग रही थी। अरूसा की फैमिली भी आ गई थी। जाने अनजाने में पाकीज़ा की नजर उससे तलाश कर रही थी जो नहीं आया था। वलीमा भी बहुत अच्छे से तय पा गया था। जिंदगी वापस मामूल पर शुरू हो गई। आज अरूसा और ज़ुहान की शादी को एक हफ्ता हो गया था। अरूसा आहिस्ता आहिस्ता पाकीज़ा की जिंदगी से वाकिफ हो गई थी। इसे यहाँ सिर्फ इसकी अम्मा साईं ही प्यार करती थी, बाकी कोई नहीं। जबकि अरूसा भी एक बहन थी। इसे तो इसके भाई और बाबा साईं बहुत प्यार करते थे। इसे ये सब बहुत अजीब लगा। अब इसके दिल में पाकीज़ा के लिए हमदर्दी और मोहब्बत बढ़ गई थी। अरूसा पाकीज़ा के साथ इसके कमरे में बैठी थी जब इसके फोन पर जिब्रान काज़मी की वीडियो कॉल आती है। अरूसा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो जल्दी से कॉल उठा लेती है। ओ भाईजान, इतने दिनों बाद आखिर आपको याद आ ही गई अपनी गुड़िया की, वो खुफकी से कहती जिस पर दूसरी तरफ से कह कहा गूंजा था। पाकीज़ा जो अलमारी में कपड़े रख रही थी इसके कह कहे पर अपना दिल थाम देती है। धड़कनें फिर से शोर मचाने लगी थी। वो कपड़े वहीं छोड़कर ड्रेसिंग की तरफ जाती कि शायद वहां से शख्स का अक्स नजर आए। हाँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, ये मेरा कमरा नहीं पाकीज़ा का है। ये देखें पाकीज़ा। पाकीज़ा जो चोरी चोरी स्क्रीन देखने की कोशिश कर रही थी अचानक अरूसा के स्क्रीन सामने करने पर वहीं शल हो जाती है। वो 3 पीस सूट पहने अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। वो जो अपनी टाई लूज कर रहा था अचानक से इसे देखकर इसका हाथ नहीं रुक जाता है। वो ब्लैक रंग की शॉर्ट कुर्ता कैपरी में सुर्ख होते चेहरे के साथ खड़ी से ही देख रही थी। शल सी। इसके बाल खुले थे जबकि दुपट्टा कहीं नहीं था। 2 मिनट लगे थे दोनों में संभलने में। जिब्रान नामहसूस अंदाज में दूसरी तरफ देखने लगा जबकि पाकीज़ा 1 मिनट में वहां से गायब हुई थी।
अरूसा दोनों से अनजान नासमझी से पाकीज़ा को वॉशरूम में बंद होता देख रही थी। अब तुम कब आओगे? तुम कहो तो जाता ही नहीं। राहत जुहान के सीने पर सरक से देख रही थी। वह दोनों इस वक्त कंफर्टर में थे। नहीं, तुम जाओ और मुझे भी इस कोठे से आज़ाद करवा लो। राहत अब इसके सीने से उठकर अपने गिर्द सफेद चादर लपेटती और बेड से नीचे टांगे लटका कर बैठ जाती है। जुहान भी उठकर बैठता, फिर इसे देखता है। हाँ, तुम बस कुछ वक्त और इंतजार करो, मैं इस लड़की अरूसा का कुछ कर लूँ। फिर क्या? उसे मार देते हैं। राहत की बात पर जुहान की आंखें खुल जाती हैं। तुम पागल हो? ऐसे कैसे? घर में सब उसकी तरफ हैं, सब उसका ख्याल रखते हैं। जुहान की बात पर राहत सर झटकती है। तो हम इसे बाहर मार देंगे। राहत की बात पर जुहान नासमझी से उसे दिखता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। राहत के चेहरे पर कमीनगी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपने बालों में हाथ फेरती, वहां फिर वैसे ही चलती दरवाजे के पास जाती है, दरवाजा खोल देती है। सामने अरूसा थी। अरूसा सामने खड़ी बरहना हाल में सफेद चादर लिपटे लड़की से नजर हटाकर बेड पर देखती है, जहां इसका शौहर शर्ट के बगैर बैठा था। जुहान का मुंह खुल जाता है। इसे राहत से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। आओ, अंदर आओ, राहत तंज से कहती है। और उषा बेयकीनी से जुहान को देखती नफी में सर हिला रही थी। आप शहर का कहकर रोज यहाँ कोठे पर आते थे? वह तकलीफ से बोली। जुहान अब बेड से खड़ा हो गया था। मुझ में क्या कमी थी जुहान साई, जो आप इस तवाइफ? वो आगे कुछ बोल नहीं सकी। अरूसा, मेरी बात सुनो। जुहान कुछ कहता हुआ इसकी तरफ बढ़ा था, तो वो हाथ के इशारे से इसे चुप करवा देती है। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बल्कि मैं आपका अपने भाई जान को बताऊंगी। वो अब रोती हुई चीखी थी। वह कमरे के बाहर ही खड़ी बोल रही थी, जिसकी वजह से बाकी लोग भी अपने गुनाहों समेत कमरे से बाहर आ रहे थे। इसे इस माहौल से घुटन हो रही थी। इससे पहले कि जुहान इस तक पहुंचता, वो वहां से भाग जाती है। ये क्या किया तुमने राहत? अब वो राहत पर चीख रहा था, जो बस मुस्कुराए जा रही थी। देख क्या रहे हो चौधरी साहब, वो तुम्हारी असलियत सबको बता देगी। क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? वो राहत की बात पर अपनी शर्ट पहनता, साथ ही चाबी, वॉलेट और गन उठाकर सरपट अरूसा के पीछे भागा। हेलो हेलो भाईजान, वो रोती हुई भागती जा रही थी, जब अचानक से इसके फोन पर जबरान काजमी की कॉल आती है। क्या हुआ अरूसा, तुम ठीक हो? मेरा दिल घबरा रहा था तुम्हें याद करके। अरूसा की बात सुने बगैर वो बोला था। नहीं भाई, मैं ठीक नहीं, वो यहाँ कोई अच्छा नहीं है। वो तवाई के साथ एक बिस्तर पर थे, मैं यहाँ कोठे पर। क्या कह रही हो अरूसा? तुम कोठे पर क्या कर रही हो और किसकी बात कर रही हो? वो अपनी जगह से खड़ा होता धारा था। जुहान साई यहाँ कोठे पर तवाइफ के साथ। हाँ, अरूसा की बात पर वो मुठियां भींच लेता है कि उसकी चीख की आवाज आती है। क्या हुआ अरूसा? अरूसा, भाई भाई मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहती, मेरा बच्चा था। एक बार फिर गोली की आवाज आई थी, जिसके साथ ही दूसरी तरफ खामोशी छा जाती है। अरूसा, वो चीखा। आगे से कॉल कट गई थी। क्या मत खुद बताएगी, क्या मत क्यों जरूरी थी? शोर, चीखो पुकार, एम्बुलेंस की आवाजें, तेज तेज चलते बूटों की आवाजें, अंधेरा और बस अंधेरा। कबूल है, वो कांपती आवाज में तीसरी बार बोली थी। अरूसा की मौत का कत्ल जुहान ने किया था। एक तवाइफ के पीछे ये साबित हो गया था। चौधरी शुजात अफरीदी अपने बेटे के बदले सारी जमीन जायदाद देने को तैयार थे, मगर जिब्रान का कहना था इसे सिर्फ जुहान की मौत चाहिए। पंचायत में एक तूफान आया था। जुहान को चौधरी शुजात ने छुपा लिया था। जिब्रान जख्मी शेर की तरह खतरनाक बन गया था। चौधरी शुजात अपने बेटे के बदले खून बहा में अब अपनी बेटी को पेश कर गए थे, जिस पर पूरे माहौल में सकूत छा गया। हाँ ठीक है, मैं खून बहा में तुम्हारी बेटी को लेने को तैयार हूँ, मगर वो मेरे साथ तवाइफ की हैसियत से जाएगी। जिब्रान ने न जाने क्या सोचकर कहा था। ये सुनकर चौधरी शुजात का मुंह कुछ पल के लिए सुर्ख हुआ, पर फिर वो बड़ी हुए थे। अगर वो बेहया है तो तुम क्यों बन रहे हो जिब्रान? बाबा साहब, मुझे खून बहा में जुहान चाहिए, या फिर इसकी बहन तवाइफ की हैसियत से। वो दो टोक बोला था। चौधरी रहमान काजमी अपने लब भींच गए। तुम्हें अभी कुछ देर तक जुहान अफरीदी की बहन मिल जाएगी तवाइफ की हैसियत से, इसलिए जुहान अफरीदी को तुम अब कुछ नहीं कहोगे। चौधरी शाहजाद अफरीदी के अल्फाज बहुत घटिया थे। सब लोग जानते थे वो बेटियों को पसंद नहीं करते, पर इस हद तक ये किसी ने नहीं सोचा था। पंचायत में ये फैसला तय पाया गया। इनके घर आने पर सब बताने पर अरीज अपने दिल पर हाथ रख गई। वो बहुत लड़ी थी चौधरी साहब से, वो नहीं मान रही थी। इसी वक्त कुछ गिरने की आवाज आई। इन्होंने दरवाजे को देखा। वहां पाकीज़ा खड़ी थी, नीले रंग के ढीले डाले सूट पर सफेद दुपट्टा ओढ़े। वो अपने बाबा साईं के अल्फाज सुनकर शल हो गई थी। चौधरी शुजात अब खुद इसकी तरफ बढ़े थे। चलो मेरे साथ, वो हाकमियत से बोले। नहीं, वो नहीं जाएगी। पीछे से रीज भी चीखी थी। वो मेरी बेटी है। अफसोस इतराफ किया भी तो कब, पाकीज़ा सोच कर रह गई। पाकीज़ा, तुम्हारा बाप होने के नाते मैं ये फैसला कर चुका हूँ, सिर्फ तुम्हारे भाई को बचाने के लिए। तुम बचाओगी ना अपने भाई को? वो पहली बार नरमी से बोले थे। अब
कि इस मौके पर वो ना चाहते हुए भी सिसक कर सर झुका गई थी। अरीज बेगम दिल पर हाथ रख गई थी। पाकिज़ा इनकी तरफ भागना चाहती थी, पर चौधरी साहब इसलिए बाहर निकल गए थे, जबकि पीछे मुलाजमाएं अरीज बेगम की तरफ भागी थी। पाकिज़ा को वापस अरीज बेगम की तरफ बार बार मुड़ता देखकर चौधरी ने इसका हाथ सख्ती से दबोचा था। पाकिज़ा आंसू भरी आंखों से इन्हें देखती। बाबा साईं, खुदा मेरा भी है, ये आखिरी अल्फाज थे जो इसने अपने बाप से बोले थे। पंचायत पर पहुंचकर इन्हें कुछ नया ही सुनने को मिला। पहले पाकिज़ा अफरीदी और जिब्रान काज़मी का निकाह होगा, फिर वो जिब्रान काज़मी के साथ जाएगी एक तवाइफ की हैसियत से। ये निकाह का फैसला चौधरी रहमान का था, जिस पर जिब्रान बहुत मुश्किल से माना था, लेकिन हैसियत इसकी सिर्फ तवाइफ की ही रहेगी, ये तय था। निकाह के बाद वो जिब्रान काज़मी के हमरा इसके घर आ गई थी। इसने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये सब भी होगा उसके साथ। उसका कसूर क्या था? वो सोच रही थी कि जिब्रान ने इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर धक्का दिया। वो टूटी डाल की तरह ज़मीन पर जा गिरी थी। तुम एक तवाइफ हो पाकिज़ा अफरीदी, अपने भाई के हर गुनाह का बदलाव तुम अदा करोगी। वो उसका रोता हुआ चेहरा देखकर धारा था। पाकिज़ा बस इस इंसान को देख रही थी जिसकी एक मुस्कुराहट पर वो अपना दिल हार गई थी। आज दूसरी मुलाकात पर वो कैसे इसके सामने आया था? हालातों ने इन्हें कहाँ लाकर मिलाया था? वो सोफे पर बैठी बेड पर सोए हुए जिब्रान को देख रही थी। आज तो वो बच गई, लेकिन कल, परसों या फिर कभी वो कैसे खुद को बचाएगी? काश वो जब पैदा हुई थी तब इसके बाबा इसे ना छोड़ते बल्कि मार ही देते, तो आज ये दिन ना दिखती। भाई भी साईं, काश आपके साथ वो सब ना हुआ होता, आप हमारे साथ होती, मेरे साथ होती। अरूसा की मौत का दुख पाकिज़ा को भी बहुत था। अगले दिन सुबह सुबह ही जिब्रान की आंख खुल गई थी। वो अपने दुखते सर को थाम कर उठता बैठा। किसी एहसास के तहत वो ड्रेसिंग की तरफ झुक देखता है, जहाँ पाकिज़ा ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपनी गर्दन पर लोशन लगा रही थी। इसे फौरन अपनी बहन का ख्याल आता है, जिसे मरे अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था। दिल में तेज सी उठी थी। वो बेड से उतरता, तेज कदम चलता इसके पास पहुंच जाता है। पाकिज़ा डर कर पलटती तो उसे कंधों से थाम कर झंझोड़ देता है। मेरी बहन को मरे हुए अभी एक हफ्ता नहीं हुआ और तुम यहाँ खड़ी मेकअप कर रही हो। इसकी गिरफ्त मजीद सख्त हुई थी। मैं मेकअप नहीं तो फिर क्या कर रही थी? अब इसने इसका कंधा छोड़कर के गले को दबोचा था, जिसके साथ ही तकलीफ से इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लब बेसाख्ता सिसके थे। जिब्रान चौंक कर अपना हाथ हटाता और उसकी गर्दन को दिखता है, जहाँ सफेद रंग की गर्दन पर जगह जगह नीले निशान वाज़ेह थे। वो नासमझी से निशानों को देखता है, फिर इसकी आंखों में नमी कल रात का सारा मंजर बयान कर दी थी। वो झटके से इससे दूर होता और बेचैनी से बालों में हाथ फेरता है। इसने ये सब अनजाने में क्या था? कुछ मिनट लगे थे इसे खुद को कंपोज करने में। पाकिज़ा अपने लब दबा तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। जिब्रान मुंह पर हाथ फेरकर खुद को नॉर्मल करता वापस इसकी तरफ पलटा। वो इसके पलटने पर ही कांप गई थी। ना जाने अब वो क्या करेगा। जिब्रान को वो लड़की हद से ज्यादा नाजुक लगी, मगर ऐसा नहीं था। अगर वो नाजुक होती तब तक मर चुकी होती। जिब्रान काज़मी अभी खुद नहीं जानता था कि इस नाजुक जान ने कई लोगों की नफरतें, हकारतें बर्दाश्त की थी। मरना होता तो तब तक मरती जब इसके बाप ने इसे धत्कारा था, जब इसके भाई ने इसे मनहूस ठहराया था। वो अब कंधे से अपनी कमीज सही कर रही थी। जिब्रान इसका सरता पैर जायजा लेता, फिर इसकी तरफ कदम बढ़ाता है। अब इसकी आंखों में सपाटपन था। अभी वो ये शुरुआत है पाकिज़ा अफरीदी, तुम बस देखती जाओ, आगे मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। मैं तुम्हें इस मुकाम पर खड़ा कर दूंगा। तब पीछे इसकी आंखें मजीद सुर्ख हुई थी कि तुम मरने के लिए तरसोगी, मेरे सामने से गिड़गिड़ाओगी। इसके अल्फाज सुनकर वह भीगी आंखें उठाकर इसका चेहरा देखती है। कितना जालिम था ये इंसान। ये भी बाकी मर्दों की तरह निकला था। ना जाने क्यों वो इसकी शफीक मुस्कुराहट से धोखा खा गई थी। जिब्रान से मुसलसल मूरत बना देख के फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस जाता है। वो अपने आंसुओं का गला घोंट कर वापस शीशे में अपना देखती है, जहाँ थोड़ी से कुछ नीचे से लेकर कंधे तक नीले निशान पड़े थे। आंसू एक बार फिर आंखों की बाढ़ तोड़कर बाहर आ गए थे। बाबा साईं, आपका ये जुल्म मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपने अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे भेज दिया, मुझे तवाइफ बनाकर भेज दिया। वो अब अपना चेहरे पर दोनों हाथ, वो अपने आंसुओं का गला ढूंढकर वापस शीशे में अपना अक्स देखती है, जहाँ थोड़ी से कुछ नीचे से लेकर कंधे तक नीले निशान थे। नहीं, ये पढ़ लिया मैंने। बाबा साईं, खुदा मेरा भी है, खुदा मेरा, बाबा साईं, खुदा मेरा भी है। वो एकदम से हाँफते हुए उठ बैठे थे। पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। वो आसपास देखते इस वक्त अपने कमरे में थे। अरीज बेगम वहाँ नहीं थी। बाहर फजर की अज़ानें हो रही थी। शायद वो वजू करने के लिए गई थी। वो दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरते। पाकिज़ा को घर से 2 दिन हो गए थे। वो जब से गई थी, इसके आखिरी अल्फाज चौधरी शुजाअत अफरीदी के कानों में किसी सूर की तरह फूंके जा रहे थे। वो बेसकून थे, न कुछ खा पा रहे थे, न सो पा रहे थे। बस अजीब सी कैफियत में निढाल थे।
जोहान अफरीदी पंचायत के फैसला सुनाने के बाद वहां से चला गया, बल्कि मुल्क से ही गायब हो गया था। मेरी मासूम बच्ची, अल्लाह रहम फरमा, मेरी मासूम बच्ची पर रहम फरमा। इसने पूरी उम्र अपने बाप भाई की नफरतें बर्दाश्त की और अब फिर वो नई आजमाइश में फंस गई। आजमाइश भी ऐसी कि वो सिसक गई थी। अल्लाह, वो पाकीज़ा है, बिल्कुल पाकीज़ा लड़की, इसकी पाकीज़गी की लाज रखिएगा। पाकीज़ा कहाँ है? चौधरी रहमान काज़मी जबरान काज़मी के हमरा डाइनिंग टेबल के गिर्द कुर्सियों पर बैठे थे। जबरान सलाम करता इनके साथ आकर बैठ गया था। अब वो अपनी प्लेट में खाना निकाल रहा था। पता नहीं सपाट तासरात के साथ कहता अब खाना शुरू कर गया था। चौधरी रहमान काज़मी नापसंदगी से उसे देखते। वो बेचारी कल से भूखी है, एहसास है तुम्हें? वो बेचारी नहीं है। चौधरी साहब की बात पर इसका दिमाग घूम गया। अच्छा तो बताओ क्या कसूर है उसका? अब चौधरी साहब के लहजे में भी सख्ती आ गई थी। वो इस घटिया इंसान की बहन है जिसने मेरी बहन की जान ली। वो अपना चम्मच प्लेट में पटक कर गुस्से से चिल्लाया था। गुस्से से इसके माथे और गर्दन की रगें फूल गई थी। इसके भाई के हिस्से की सजा तुम ऐसे उसे क्यों दे रहे हो? ये तो हमारा माशरा घटिया है जो अपने गुनाहों की सजा अपनी माँ बहन को भुगतने के लिए भेज देते हैं। खून बहा के नाम पर ना जाने कितने मासूमियों की जिंदगी खराब करते हैं और गुनाहगार वैसे ही आवारा फिरते हैं और किसी दूसरे इंसान की जिंदगी खराब करते हैं। अगर तुम इसका बदला उसकी बहन से लोगे ना तो तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। इसने तुम्हारी मासूम बहन की जिंदगी खराब की और तुम उसकी बहन की जिंदगी खराब करने जा रहे हो। अपने बाप के लफ्जों पर वो खामोश हो गया था। शर्मिंदगी से नहीं बल्कि जब्त से। चौधरी रहमान को लगा वो समझ रहा है, सो वो सुकून का सांस लेते फिर इसके हाथ पर हाथ रखते हैं। बेशक हमारा दुख बहुत बड़ा है ले बेटा, लेकिन इसमें इस बच्ची का कोई कसूर नहीं जो खून बहा में आ गई है। तुम इसके साथ ज्यादती ना करो, इसलिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके तुम्हारा निकाह कर दिया है उसके साथ। अपने बाप की सोच पर वो हैरान रह गया था। कैसा बाप था जो दुश्मन की बेटी से नरम रवैया रखने का कह रहा था। इसके बोलने का कुछ फायदा नहीं, सो वो खामोश रहा। जब चौधरी साहब अपनी बात करके फारिग हुए तो बस बात में सर हिलाता वहां से उठ गया, क्योंकि बातों के दौरान इसने थोड़ा बहुत खा लिया था। इसे उठते देखकर चौधरी साहब को लगा वो पाकीज़ा को खाने के लिए बुलाने जा रहा है। वो सोए मुतमईन होते दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जा हुए। आज चौधरी शुजात अफरीदी और इनकी बीवी अकेले ही डाइनिंग टेबल के गिर्द पड़ी कुर्सियों पर बैठे थे। खाना वैसे ही सामने पड़ा ठंडा हो रहा था। दोनों में से किसी का भी कुछ खाने को दिल नहीं चाहता था। पाकीज़ा से लाख नफरत होने के बावजूद में घर में रौनक उसी के दम से थी। अम्मा साईं, बाबा साईं मेरे हाथ का बना पुलाव कितने मजे से खा रहे हैं। पाकीज़ा अपनी अम्मा साईं की कान के पास झुककर सरगोशी में कहती खिलखिला गई थी। इसकी आवाज सामने बैठे जुहान ने बहुत आसानी से सुनी थी। ये पुलाव किसने बनाया है? जुहान अफरीदी ड्रामाई अंदाज में कहता, प्लेट पीछे खिसका देता है। सब मुलाजिम चौकन्ना हो जाते हैं। अच्छा तो बना है? चौधरी शुजात अफरीदी ने खाने से हाथ धोकर बेसाख्ता कहा था। इनकी बात सुनकर पाकीज़ा, जो जुहान के रद्द-ए-अमल पर उदास हुई थी, उनके यूं तारीफ करने पर मुस्कुरा देती है। पाकीज़ा की मुस्कुराहट पर जुहान का दिल जल जाता है। जुहान अपनी जगह से खड़ा हो गया था। अरीज बेगम और पाकीज़ा भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं। बाबा साईं, ये अच्छा नहीं, क्योंकि ये पुलाव पाकीज़ा ने बनाया है। जुहान की आवाज़ पर अरीज बेगम ने बेसाख्ता ना महसूस अंदाज में पाकीज़ा को अपने पीछे छुपा लिया था। जुहान के अल्फाज सुनकर चौधरी साहब के माथे पर बल पड़ जाते हैं। वो एक झटके से पुलाव की भरी प्लेट जमीन पर फेंकते हैं कि जैसे इसमें कोई नापाक चीज आ गई हो। पाकीज़ा डर से अपनी जगह से उछल पड़ती है। इसने आंखें खौफ से मीच ली थी। 1000 बार कहा है इस मनहूस को किचन से दूर रखा करो। मुलाजिम सर झुका गए थे। चौधरी साहब की नजर अब अपनी बीवी पर थी, जो पाकीज़ा के सामने खड़ी थी। वो बगैर कुछ कहे ही सर झटक कर वहां से चले जाते हैं। आज भी सामने पुलाव था। चौधरी साहब को इस दिन का वाकया बड़ी शिद्दत से याद आया था। इनकी हिम्मत ही नहीं हुई कोई खाने की, तो एक बार फिर ऐसे ही बगैर कुछ खाए वहां से उठ गए। अरीज बेगम अपनी नम आंखों से इन्हें बगैर कुछ खाए वहां से जाता देख रही थी। वो कमरे में आए तो खूबसूरत ग्रे कलर की लॉन्ग फ्रॉक में थी, जिसके बाजू नहीं थे और अगला पिछला गला भी डीप था। जबरान एक पल के लिए चौंका। वो कोई उदास परी पेकर लग रही थी। चेहरे पर मीठे मीठे आंसुओं के निशान थे। आंखें सूजकर मजीद पुरकशिश हो गई थी। जबरान कमरे से निकलते वक्त ये ड्रेस उसके मुंह पर फेंक कर गया था। अगर मेरी वापसी तक तुमने ये नहीं पहना तो मैं तुम्हें खुद पहनाऊंगा, याद रखना। उसकी धमकी से डरकर वो बेचारी मर्दी क्या ना करती। सो अब इस फराक में घबराई सी खड़ी थी, ना जाने अब ये क्या करने वाला था।
وہ جلدہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ پاکیزہ اس کی نظروں کی وارفتگی سے اندر تک کانپ گئی تھی۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں سے اس کا کلپ اتارتا تو بال کھل گئے۔ پاکیزہ گھبرا کر اسے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ جبران کو اس کی یہ حرکت بالکل ناگوار گزری۔ وہ اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ کھینچتی بالکل اس سے قریب آ جاتی ہے۔ پاکیزہ کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ وہ بیچاری کل سے بھوکی ہے، احساس ہے تمہیں؟ وہ بیچاری نہیں ہے۔ اچھا تو بتاؤ کیا قصور ہے اس کا؟ وہ اس گھٹیا انسان کی بہن ہے جس نے میری بہن کی جان لی۔ جبران کی پکڑ اس کے بازو پر ہلکی ہوئی تھی۔ اس کی پکڑ پر خود پر ہلکی پا کر وہ فوراً اس سے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ بھائی مجھے بچا لیں۔ عروسہ کیا ہوا؟ تم کہاں ہو؟ زوہان سائی یہاں کوٹے پر طوائف کے ساتھ آ۔ دردناک چیخ کی آواز پر جبران کے کانوں میں سنائی دی تھی۔ وہ اچانک سے اپنا سر تھامتا ہے۔ کیا ہوا عروسہ؟ عروسہ بھائی عروسہ! وہ تکلیف سے دو رہا ہوتا ہے۔ پاکیزہ اچانک اس کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور اس کی طرف بڑھی تھی، یہ بھول کر کہ وہ کتنا ظالم ہے۔ شاید وہ ایک نظر کی محبت کا اثر تھا۔ جبران کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ مجھے بچا لیں بھائی، میں مرنا نہیں چاہتی، میرا بچہ تھا۔ ایک بار پھر گولی کی آواز آئی تھی۔ عروسہ! وہ چیخا تھا۔ پاکیزہ جو اس کے برابر زمین پر بیٹھی تھی اس کی دھاڑ پر کانپ گئی۔ تکلیف سے جبران کا خوبرو چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شہد رنگ نم سی آنکھیں کالی ڈری آنکھوں سے ملی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ جبران تکلیف سے دھیمے لہجے میں بولا تھا، آواز میں گیلا پن تھا۔ پاکیزہ ناسمجھی سے اسے سن رہی تھی۔ میری عروسہ! جبران کے الفاظ سن کر پاکیزہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ عروسہ کی موت کا دکھ اسے بھی تھا، مگر وہ ماں بننے والی تھی، یہ بات اس کی روح نکالنے کے لیے کافی تھی۔ اس کے دل سے ٹیس اٹھی تھی، آنکھوں میں یکدم سے آنسو تیر گئے تھے۔ میں نے اسے بہن نہیں بیٹی بن کر پالا تھا۔ ہم بہت چھوٹے تھے جب اماں سائیں گزر گئیں۔ میں اور بابا سائیں اس سے بہت محبت کرتے تھے، وہ ہماری گڑیا تھی، اس گھر کی رونق، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں بول رہا تھا۔ بابا سائیں جب بھی اس کی شادی کی بات کرتے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے خود سے دور بھیجنے کا خیال ہی میری جان نکالنے کو کافی تھا۔ پتہ نہیں، پر مجھے پہلے ہی سے احساس ہونے لگا تھا کہ ہماری عروسہ… اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا۔ پاکیزہ نے پہلی بار کسی مرد کو روتے دیکھا تھا، اپنی بہن کے لیے۔ بے ساختہ اس کے دل سے ہوک اٹھی تھی، کتنی خوش نصیب تھی مرنے والی۔ بابا سائیں نے ساتھ والے علاقے کے چودھریوں میں اس کا رشتہ دیکھ کر پسند کر لیا، بس اس لیے کہ وہ ہمارے پاس رہے گی، جب چاہیں گے اسے مل آئیں گے، جب چاہے گی وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ وہ جو کسی ٹرانس میں بول رہا تھا، اب اس کے سامنے بیٹھی پاکیزہ کو دیکھا تھا، آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہوئی تھی۔ پر پھر وہ مار دی گئی۔ ان ظالموں نے اسے مار دیا، اس کے پیٹ میں پلتے نئے وجود کو مار دیا، اس کے بچے کو مار دیا۔ اس کے لفظ برچھی کا کام کر رہے تھے جو پاکیزہ کا وجود زخمی کر گئے۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگ گیا تھا، لب سسک گئے تھے۔ اسے مار دیا، اس کے بچے کو مار دیا، صرف ایک طوائف کے پیچھے۔ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ تم لوگوں نے میری بہن کو مار دیا اور میرے بابا کہہ رہے ہیں میں تم پر ترس کھاؤں۔ کیا تم ترس یا رحم کے قابل ہو؟ تمہارا خاندان معافی کے قابل ہے؟ پاکیزہ اپنا سر جھکا گئی تھی۔ نہیں پاکیزہ آفریدی، تم لوگ نفرت کے قابل ہو۔ تمہارے خاندان کا ایک ایک فرد میری عروسہ کے قتل میں شامل ہے، کیونکہ تم لوگوں نے زوہان آفریدی کی اصلیت چھپائی، گناہ ہوتا دیکھ کر بھی خاموش رہے۔ سب سے بڑا قصور تم لوگوں کا ہے، پھر کیسے تم بے قصور ہو؟ وہ دھاڑ رہا تھا۔ پاکیزہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ تمہارا خاندان اپنے کیے کا بدلہ چکاؤ گے۔ وہ اپنا چہرہ صاف کرتا سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اب وہ اپنے کپڑے جھاڑتا کھڑا ہو گیا۔ اس نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہنی تھی۔ اب وہ پاکیزہ کا بازو دبوچ کر سامنے کھڑا کر گیا۔ پاکیزہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا نیچے لے آیا۔ چودھری رحمان کاظمی وہاں سے جا چکے تھے تو وہ اسے لے کر باہر نکل آیا۔ چھوڑے، مجھے کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ مجھے چھوڑے۔ وہ پاکیزہ کی آواز کو اگنور کرتا اسے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر کار میں پھینک کر لاک لگا دیتا ہے، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر سامنے آ جاتا۔ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ خالی سڑکوں کو دیکھ کر گھبراتی ہوئی بولی۔ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ پاکیزہ خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھتی ہے، پھر جبران کا سپاٹ چہرہ دیکھتی ہے۔ وہ صفحے سے لب بھیجے ڈرائیونگ کر رہا تھا، کشادہ ماتھے پر ڈھیروں بال تھے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ مغرور نقوش والا انسان کچھ دیر پہلے اپنی بہن کے لیے رویا تھا۔ پاکیزہ کو بے ساختہ اس کی اور اپنی پہلی ملاقات یاد آئی جس میں وہ مسکرایا تھا۔ بے ساختہ ہی وہ دوبارہ اس کا چہرہ دیکھتی، وہاں صرف سنجیدگی اور غصہ تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی مسکرایا بھی ہوگا۔ جبران سائیں، آپ ہمیں… شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ آئندہ کے بعد مجھے سائیں مت کہنا۔ میرا نام جبران کاظمی ہے اور تمہیں تمہاری اسی صحیح جگہ پر لے جا رہا ہوں۔
जहाँ तुम्हें होना चाहिए। घर रहोगी तो तुम मुझे बाबा साईं के साथ जुबान दराजी पर मजबूर करोगी। जिब्रान की बात पर इसके होंठ नीम वा खुले थे। इसकी कोई भी बात पाकीज़ा को समझ नहीं आई थी। कौन सी जगह की बात कर रहा था वो, और इसने चौधरी रहमान काज़मी से तो कभी बात तक नहीं की, फिर इसकी वजह से कैसे? वो अभी सोच ही रही थी जब एक जगह पर आकर इसने गाड़ी को ब्रेक लगा दी थी। वो एक हवेली टाइप जगह थी, जैसे कोई फार्म हाउस। अब वो खुद गाड़ी से निकलकर उसकी तरफ बढ़ा था। पाकीज़ा को बहुत शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। जिस तरफ का दरवाज़ा जिब्रान ने खोला था वो उस तरफ से खिसक कर दूर होती दूसरे दरवाजे के साथ लग गई थी। ये उसकी तरफ से खुद को बचाने की एक छोटी सी कोशिश थी। जिब्रान इसकी हरकत पर सख्ती से दांत कचकचाता। पाकीज़ा यूं बैठी थी कि इसके पांव सीट पर जिब्रान की तरफ थे। जिब्रान की नज़र इसके नाजुक गुलाबी पैरों पर पड़ती। वो इन्हें थाम कर एक झटके से इसे अपनी तरफ खींचता। वो दूसरे ही पल कटी डाल की मानिंद सीधा उसके मजबूत सीने से आ लगी थी। एक मिनट के लिए पाकीज़ा का सर घूम गया था। जिब्रान इसकी हालत को इग्नोर किए इसका बाजू दबोच कर खड़ा करता और अपने साथ घसीटता अंदर ले जाता है। इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। अब इसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा आ रहा था। वह ना जाने कितनी राहदारियां अबूर करके इसे एक कमरे में ले आया था। ये कमरा बाकी कमरों की निस्बतन बड़ा था। जहाजी साइज बेड के सामने ही सिटिंग के लिए हल्की सीरत सोफे लगे हुए थे। वो इसे बेड पर पटक चुका था। पाकीज़ा घूमते सर के साथ बामुश्किल आसपास देखती। पूरे कमरे में इन दोनों के सिवा कोई नहीं था। ये आप मुझे कहाँ लाए हैं? वो अपना सर थामती बामुश्किल बोली थी। जिब्रान मुसलसल किसी को कॉल कर रहा था। हाय बडी। 3-4 लड़के एक साथ कमरे में दाखिल हुए थे। पाकीज़ा जो जिब्रान की मुंतजिर थी के जवाब की मुंतजिर थी, अचानक इतने लड़कों को देखकर हैरान रह जाती है। कहाँ थे तुम लोग? इतनी देर लगा दी। खैर, सॉरी यार, ट्रैफिक में फंस गए थे। तू ये बता, मेरा मतलब तू इस लड़की की बात कर रहा था? हाँ, यही है तुम लोगों को गिफ्ट। जिब्रान और इन लड़कों के अल्फाज सुनकर जैसे पाकीज़ा के सर पर सातों आसमान गिरे थे। वाह यार, ये हूर कहाँ से उठा लाए? ये कहाँ से मिली? ये सच में हमारे लिए है? तरह तरह के जुमले पाकीज़ा के कानों में पड़ रहे थे। वो बेयकीनी से जिब्रान को देख रही थी। जिब्रान इससे नजर चुराकर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखता है। तुम लोग शुरू करो। जिब्रान अपना फोन साथ वाले लड़के को पकड़ा देता है। बाकी 3 लड़के पाकीज़ा को सरता पांव देखते उसकी तरफ बढ़े थे। पाकीज़ा तो ये सब सोच भी नहीं सकती थी जो जिब्रान काज़मी ने उसके साथ किया था। जिब्रान, ऐसा मत करें, खुदारा ऐसा मत करें। जिब्रान जो दरवाजे की जानिब कदम उठा चुका था, पाकीज़ा की आवाज़ पर रुक जाता है, मगर पलटा नहीं था। वो लड़की अब इसके करीब पहुंच गए थे। पाकीज़ा इनसे खौफजदा होती जिब्रान के पीछे भागने लगती है कि एक लड़का इसका बाजू थाम कर अपनी तरफ खींचता है। कहाँ जा रही हो हसीना? हमें पहले अपना तवाफ तो करने दो। दूसरा लड़का इसके बालों को छू कर बोला था। नहीं नहीं, दूर रहो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिब्रान मुझ पर ये जुल्म मत करे, मुझे इनसे बचा ले। जिब्रान के अंदर इश्तियाल सा भरपा हुआ था। इसे कैसे छोड़ दे? अब वो तीनों बेबाकी से इसके वजूद को छू रहे थे। नहीं नहीं, बाबा साईं बचा ले मुझे, बाबा साईं छोड़ो मुझे, छोड़ो। जुहान भाई, अपनी बहन को बचा लें इन दरिंदों से, प्लीज भाई बचाए मुझे, खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करे। पाकीज़ा तड़प तड़प कर रो रही थी। उसे यूं लग रहा था ना जाने कितने कीड़े मकोड़े उसके वजूद पर रेंग रहे हैं। खुदा के लिए मुझ पर तरस खाएं, आप लोगों की भी तो माँ बहन होगी ना। वो हाथ जोड़े अब इन लड़कों के सामने गिड़गिड़ा रही थी। जिब्रान जब से अपनी मुठिया भींच गया था। वो लड़के बहरे बने अब इसे बेड पर धक्का दे चुके थे। जिब्रान साईं, वो पूरी जान से चीखी थी। बस रुक जाओ। जिब्रान की धाड़ पूरे कमरे में गूंजी थी। वो तीनों वहीं रुक जाते हैं। चौथा लड़का जो वीडियो बना रहा था वो अब वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करके जिब्रान को दिखता है। क्या यार, अभी तो मजा आने लगा था। बस बहुत हो गया, इतना वीडियो के लिए काफी है। और ये मेरा फार्म हाउस है, कोई फहाशी का अड्डा नहीं जहाँ तुम लोग मजे करो। जिब्रान की बात पर वो तीनों हड़बड़ाए थे। तूने खुद ही तो कहा था कि ये हमारे लिए है। इनकी बात पर जिब्रान अपना इश्तियाल कम करने के लिए बालों में हाथ फेरता। वो सही तो कह रहे थे, तो फिर इसे इतना बुरा क्यों लग रहा था? हाँ, तुम लोगों के लिए ही है, लेकिन तब जब ये कोठे पर चली जाएगी। जिब्रान की बात पर इन्हें ज्यादा खुशी नहीं हुई थी। जिब्रान चौथे लड़के से अपना फोन पकड़कर एक नजर वीडियो को देखता है। फिर ऐसे ही वीडियो चौधरी शुजात अफरीदी और जोहान अफरीदी को ईमेल कर देता है। ये करके जैसे इसके आग को तस्कीन मिली थी। पर ये सिर्फ उसे लगा था। वो फोन जेब में डालकर इन लड़कों को देखता इनकी पुश्त के पीछे बैठ छुप गया था, जिस पर पाकीज़ा बेहोश पड़ी थी। ऐसे इसे यहाँ से सीधा कोठे छोड़ाना और इस बात का ख्याल रखना कि मेरा नाम कहीं ना आए। अब से ना मैं इसे जानता हूँ, ना ये मुझे जानती है। हाँ, अगर हो सके तो उसके बाप भाई का नाम सबको बता देना। वो सपाट लहजे में कह रहा था। चेहरे से तो नहीं, अलबत्ता लफ्जों से वो कोई जानवर ही लग रहा था। ये कहने के बाद पाकीज़ा को देखना तो दूर की बात, वो 1 मिनट भी नहीं रुका था। पीछे वो होश से बेगाना बेड पर पड़ी थी। लोगों के लिए तो अभी क़यामत आनी थी, पर पाकीज़ा के लिए क़यामत आ गई थी।
ज़ुहान अफरीदी जर्मनी के रोड पर खड़ा कैफे से कॉफ़ी ले रहा था। ब्लू जीन्स पर वाइट टी शर्ट पहने, काली सन ग्लासेस लगाए, वो सबसे अनजान अपनी जिंदगी में मगन लग रहा था। इस चीज़ का एहसास तक नहीं था कि वह अपनी मासूम सी बहन को बेचकर नहीं दफना कर आया है। मैसेज की ट्यून पर इसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला था। अरीज बेगम अपनी किचन में अपने दिल पर हाथ रखे खड़ी थी। पाकिज़ा को जिस दिन ज़बरदस्ती घर से लेकर गए थे उस दिन उनको हार्ट अटैक हुआ था और आज फिर इनके दिल में शदीद दर्द उठी थी। वो कहते हैं ना, माँ दूर भी हो तो अपने बच्चे पर गुजरी तकलीफ को भांप लेती है। अल्लाह, या अल्लाह खैर, मेरी बच्ची तो ठीक है ना अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना अल्लाह खैर। इससे पहले वह दर्द से बेहाल होती ज़मीन पर गिरती। मुलाजमा भागती हुई इनकी तरफ आई थी। चौधरी शुजात अफरीदी बैठक में बैठे लोगों के मसले सुन रहे थे जब इनके फ़ोन पर मैसेज ट्यून बजी। चौधरी साहब, आपको कोई ईमेल आया है, उनका मुलाजिम पास आकर इनके कान में बोला था। ठीक है, तुम इसे खोलकर यहाँ टेबल पर रखो और खुद जाकर जाहिद को देखो, वो अभी तक चाय क्यों नहीं लाया। चौधरी साहब मोबाइल को एक नज़र कहते फिर खुद लोगों की तरफ मतवज्जा हुए। नहीं बाबा साईं, बचा ले मुझे बाबा साईं, छोड़ो मुझे ज़ुहान भाई, अपनी बहन को बचा लें इन दरिंदों से, प्लीज़ भाई बचाए मुझे, खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करे। पाकीज़ा तड़प तड़प कर रो रही थी। ज़ुहान पूरे वजूद समेत शल हो गया था। ये वीडियो में 3 लड़के उसकी बहन के साथ। मोबाइल इसके हाथ से छूट कर गिर गया। जर्मनी के चलते रोड की आवाज़ें अभी से सुनाई नहीं दे रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो ज़ुहान भाई, अपनी बहन को बचा लें इन दरिंदों से, प्लीज़ भाई बचाए मुझे, खुदा के लिए कोई मेरी मदद करे। पाकीज़ा की आवाज़ में तड़प और बेबसी थी। ना जाने आज कैसे कहाँ गई, न जाने आज कैसे ज़ुहान अफरीदी को पहली बार एहसास हुआ था कि उसकी भी एक बहन है जिसके साथ वो एक धार से फ़ोन पर पाँव मारता फिर मुसलसल मारता, मगर पाकीज़ा की तकलीफ आवाज़ें भी आना बंद नहीं हुई थी। मेरी बहन, मेरी पाकीज़ा गुड़िया, मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठता चला गया। अब वो बेदर्दी से पागलों की तरह अपने बाल नोच रहा था। मेरी पाकीज़ा बहन, मेरी बहन कोई बचाए, मेरी बहन को, मेरी बहन। आसपास के लोग इसका हाल देखकर इसकी तरफ बढ़े थे। वो पागलों की तरह चीखता अब एक एक के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। चौधरी शुजात अफरीदी का चेहरा लट्ठे की मानित सफेद पड़ गया था। पाकीज़ा की दर्दनाक आवाज़ इनके कानों में सुर की तरह फूंकी जा रही थी। नहीं बाबा साईं, बचा ले मुझे बाबा साईं, वो तड़प रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। छोड़ो मुझे। वो एक टक मोबाइल स्क्रीन को देख रहे थे। मोबाइल टेबल पर पड़े होने की वजह से वहां मौजूद सब लोग आवाज़ें सुनने के साथ साथ मोबाइल पर चलती वीडियो भी देख रहे थे, जहां 3 लड़के पाकीज़ा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। खुदा के लिए मुझ पर तरस खाएं, आप लोगों की भी तो माँ बहन होगी ना। वीडियो मुसलसल चल रही थी। इनका पूरा जिस्म फालिज ज़दा मरीज की तरह शल हो गया था। एक मुलाजिम होश में आता और आगे बढ़कर जल्दी से वीडियो बंद कर देता है। आया कि इसके मालिक की इज्जत का सवाल था। सब लोग मुंह पर हाथ रख चुके थे, जबकि चौधरी सज्जाद साहब, मैं उजड़ गया, मेरी बेटी उजड़ गई, वो मर गई, मेरी पाकीज़ा, मेरी पाक बेटी मर गई, मैं मर गया, सब खत्म, सब खत्म। इनके हलक से आवाज़ ऐसे निकल रही थी जैसे किसी कब्रिस्तान से आ रही हो। अलबत्ता इनका चेहरा बाएं जानिब को मुड़ रहा था। सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि बाएं जानिब से इनका पूरा जिस्म मुड़ रहा था। अचानक वो सोफे से फिसलकर जमीन पर गिर जाते हैं। हर तरफ अंधेरा फैल जाता है। आवाज़ें, चौधरी साहब कोई एम्बुलेंस को फ़ोन करो। शोर, क्या हुआ इस आदमी को, इसने खुदकुशी की है, कोई पुलिस को फ़ोन करे। नहीं, पहले एम्बुलेंस बुलाओ। पुलिस की गाड़ी की आवाज़ें, एम्बुलेंस की आवाज़ें, कदमों की आवाज़ें, मेरी पाकीज़ा, चीखो पुकार, अंधेर, वॉल क्लॉक की आवाज़ें। टिक टिक टिक। इसने आहिस्ता से आंखें खोली थी। रोशनी इसकी आंखों में चुभी थी। वो फिर से आंखें मोड़ लेती। पाकीज़ा, मेरी पाकीज़ा। मध्यम सी कांपती आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी। वो एक बार फिर आहिस्ता से आंखें खोलती। इस बार रोशनी ने ज्यादा तकलीफ नहीं दी। पाकीज़ा। दाएं तरफ से फिर पुकारा गया। वहाँ कोई था। वो घर आते ही रूसा के कमरे में गया था। वो खाली था, मगर रूसा की खुशबू इसके वहाँ होने का पता दे रही थी। वो आंखें बंद करके गहरा सांस भरता और उसके बेड पर बैठ जाता है। तुम्हारा बदला मैंने ले लिया रूसा, वो आहिस्ता से थका थका सा बोला। आंखें एक पल में नम हो गई थी। वो वीडियो देखकर ज़ुहान और इसका बाप दोनों मर जाएंगे, हमारा बदला पूरा हो जाएगा। वो हंसा था, फिर ठहका लगाकर हंसा था, मगर फिर इसकी हंसी इसके चेहरे से रुखसत होती वीरानी छोड़ गई। वह बिल्कुल खामोश हो जाता है। अरूसा, मैं बदला लेकर भी मुतमईन नहीं हूँ। मेरे एहसास जज्बात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो दोनों हाथों में अपना सर थाम लेता है। इसके पास ही कार्टन का बॉक्स पड़ा था जिसमें रूसा का वो सामान था जो इसके ससुराल से आया था। वो अपना ध्यान इधर उधर करने के लिए कार्टन में से सामान निकालने लग जाता है। हाँ, ये खाने वाली डिश उठाओ और मेरे साथ चलो।
चौधरी रहमान काज़मी मुलाजमा को कहकर जिब्रान की तरफ कदम बढ़ा देते हैं जहाँ पाकीज़ा थी। दरवाजे के पास पहुंचकर जब वो दरवाज़ा खोलते तो हैरान हो जाते हैं, वहाँ कोई नहीं था। वो आगे बढ़कर हर जगह दिखते हैं, वहाँ कोई नहीं था। इनका दिमाग घूम जाता है। वो तेज तेज कदम चलकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। मुलाजमा इनकी पुश्त तकती रह जाती है। चौधरी साहब के कदम अब अरूसा के कमरे की तरफ थे। दरवाज़ा पहले से ही खुला था। वो चलते अंदर जाते हैं। सामने ही वो सफ़ेद पर्दे चेहरे के साथ खड़ा था। इसके हाथ में कोई किताब थी, शायद वो रूसा की डायरी थी। मैं बहुत हैरान हूँ, कोई बाप इतनी भी नफरत कर सकता है अपनी बेटी से। मुझे तरस आता है पाकीज़ा पर। वो कितनी प्यारी है, मासूम है। वो नाजुक सी जान खुद पर कितना जुल्म बर्दाश्त करती है। खाली सफ़ा। मैं आज बहुत उदास थी। जहान किसी लड़की से बात कर रहे थे। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं इन्हें कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि वो अब काफ़ी बदल गए हैं। वो मुझे डांटते हैं, मुझे डर लगता है अब उनसे। अभी कुछ देर पहले मैं रो रही थी जब पाकीज़ा मेरे पास आई। वो पगली मुझे रोता देखकर खुद भी रो पड़ी। मैंने पाकीज़ा के लिए दुआ की अल्लाह साईं से कि वो इसे कभी कोई गम न दे, इसे ढेरों खुशियाँ दे, मेरी ज़िंदगी से लगा दे। वो मुझे जिब्रान भाई के लिए बहुत अच्छी लगती है। वो जिब्रान भाई जैसा ही लड़का डिजर्व करती है। वो इस प्यारी सी कांच की गुड़िया को बहुत ख्याल रखेंगे जैसा मेरा रखते थे। वो बहुत नरम दिल के इंसान है। खाली सफ़ा, एक और खाली सफ़ा, सारे खाली सफ़े। डायरी आगे नहीं लिखी थी। डायरी पर जिब्रान की पकड़ हल्की हो गई तो डायरी नीचे गिर गई थी। वो अब जिब्रान भाई जैसा ही लड़का डिजर्व करती है। वो इस प्यारी सी कांच की गुड़िया को बहुत ख्याल रखेंगे जैसा मेरा रखते हैं। वो बहुत नरम दिल के इंसान है। छोड़ो मुझे प्लीज़, मुझे छोड़ दो। मेरा कसूर क्या है? वो बहुत नरम दिल के इंसान है। नहीं, दूर रहो, छोड़ो मुझे, छोड़ो जिब्रान। जिब्रान मुझ पर ये जुल्म मत करे, मुझे उनसे बचा ले। जिब्रान का सर चकराया। एकदम से इसकी आंखों के आगे अंधेरा आया था। मैं बहुत हैरान हूँ, कोई बाप इतनी भी नफरत कर सकता है अपनी बेटी से। मुझे तरस आता है पाकीज़ा पर। वो कितनी प्यारी है, मासूम है। वो नाजुक सी जान खुद पर कितना जुल्म बर्दाश्त करती है। जिब्रान साईं की दर्दनाक चीख इसके कानों में गूंजती थी। जिब्रान, जिब्रान, तुम सुन क्यों नहीं रहे? इसे होश तब आया था जब सामने खड़े चौधरी साहब ने इसे कंधों से थाम कर झिंझोड़ा था। वो धुंधली पड़ती बसारत से उन्हें देखता रहा। वो लड़की कहाँ है जिब्रान? वो कहाँ है? इन्हें कुछ बहुत ही गलत होने का एहसास हुआ। वो जिब्रान भाई जैसा ही लड़का डिजर्व करती है। वो बहुत नरम दिल के इंसान है। इसके कानों में एक बार फिर वही लफ्ज गूंजे जिसे जैसे अरूसा खुद इसे डायरी पढ़कर सुना रही हो। नहीं, मैं बहुत घटिया इंसान हूँ अरूसा। चौधरी साहब इसकी हालत पर चौंके थे। वो लड़की कहाँ है जिब्रान? जिब्रान सुर्ख होती आंख उठाकर इन्हें देखता है। वो चारों इसी कमरे में खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। अब इसका क्या करना है? पहला लड़का बोला। जैसा जिब्रान ने कहा, कोठे पर ले चलते हैं। दूसरा कंधे छुपाकर बोला, लेकिन यार ये बहुत प्यारी है, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। ये तो वही बात हो गई कि हाथ में फल पकड़कर कहा जाए कि अब ऐसे खाना नहीं है। इसकी बात पर सबका कहकहाट छूटा था। फिर तूने ये भी सुना होगा, सब्र का फल मीठा होता है। चौथे लड़के ने इसकी बात में टुकड़ा लगाया। पहला मुंह बनाकर रह जाता है। चल अब उसे उठाओ, फिर कोठे पर चले। चंदाबाई खुश हो जाएगी इसे देखकर। चौथे की बात सुनकर अब दूसरे वाला लड़का पाकीज़ा को बाहों में उठाकर ले जाने के लिए आगे बढ़ा था। वो कानों पर हाथ रखे सबसे बेनियाज बस चीख रहा था, पाकीज़ा मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गुड़िया मुझे माफ़ कर दो, कोई मेरी बहन को बचाए, प्लीज़ प्लीज़ कोई उसे बचाए। वो उर्दू में बोल रहा था। इसकी जुबान किसी को समझ नहीं आ रही थी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी बेबसी से रो रहा था। दिखने वालों को तो वो पागल लग रहा था। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ, अरूसा टूटती सांसों में कह रही थी जब एक खिंच से खामोश करवा देती है। आधा अधूरा तकलीफदा मंजर इसे याद आया था। वो तरफ जाता है। जुहान साईं, आपने अच्छा नहीं किया। धीमी तकलीफ से भरी आवाज सुनकर वो फौरन से अपना सर उठाकर सामने रोड को देखता है जहाँ अरूसा सफेद फ्राक में खड़ी थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पेट पर हाथ रखे मलामती नजरों से उसे देख रही थी। आज पहली बार जुहान अफरीदी को अरूसा काली या बदसूरत नहीं लगी थी। आज वो उसे अपनी लगी थी, बहुत खास अपनी। इसके आंसू रुक गए थे। वह बेयकीनी से रोड पर खड़ी अरूसा को देख रहा था, हसरत से, माजरत से, मोहब्बत से। अरूसा, तुम जिंदा हो, मेरा बच्चा भी। वो एक पल के लिए सब भूल गया था। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। एक तरफ से फुल स्पीड में चलता पेट्रोल का टैंकर आ रहा था। जुहान की बेसाख्ता नजर इस पर गई थी। अरूसा हटो, अरूसा पीछे हटो, अरूसा, वो कहने के साथ ही रोड की तरफ दौड़ा था। ये सब पलक झपकने की देर थी। अचानक से शोर उठा। पेट्रोल का टैंकर जुहान को बुरी तरह से जख्मी कर गया। इसके सर से खून बहुत तेजी से निकल रहा था। इसकी सांसें टूट रही थी। वह बस धुंधली निगाहों से सामने खड़ी अरूसा को देख रहा था, जो टैंकर गुजरने के बावजूद ट्रक से मस न हुई थी। मुझे माफ कर। सांसों ने इसे माफी मांगने की मोहलत भी नहीं दी थी। इसकी सांसें खत्म होते ही अरूसा की शौक भी हवा में तहलील हो गई थी।
चौधरी साहब, हर तरफ शोर मच गया था। चौधरी शुजात अफरीदी को फालिज का अटैक हुआ था। सब लोग इनके आसपास खड़े हो गए। कुछ ही देर में सब चौधरी साहब को अस्पताल ले गए थे। अरीश बेगम असर की नमाज पढ़कर तस्बीह कर रही थी। इनका दिल अभी भी बेचैन था। मुलाजमा इनके कमरे का दरवाजा बजाकर अंदर आई थी। इसके हाथ में अरीश बेगम की दवाइयाँ थी। बड़ी बीबी, ये दवाई खा लें। वह सर हिलाकर दवाई रखने का इशारा करती, फिर अपनी इबादत में मशगूल हो जाती। वो जाए नमाज के पास पड़े छोटे टेबल एक साइड पर दूध का गिलास और दवाई रख देती। इनके कमरे का दरवाजा बजाकर अंदर आई थी। इसके हाथ में अरीश बेगम की दवाइयाँ थी। बड़ी बीबी, ये दवाई खा लें। वो सर हिलाकर दवाई रखने का इशारा करती, फिर अपनी इबादत में मशगूल हो जाती। वो जाए नमाज के पास पड़े छोटे टेबल की एक साइड पर दूध का गिलास और दवाई रख देती है। इस छोटे टेबल पर सिपारे और यासीन पड़ी हुई थी। मुलाजमा अब खड़ी होकर अपने हाथ मसल रही थी। आया कि वो चौधरी साहब को बताया नहीं। अरीश बेगम तस्बीह मुकम्मल करती अब दुआ के लिए हाथ उठा चुकी थी। अल्लाह पाक, मेरी बच्ची की हिफाजत करना, मैंने इसे आपके मान में दिया। ये दुआ उन्होंने लब हिलाए बगैर की थी। अब वो दुआ मुकम्मल करके मुंह पर हाथ फेर रही थी। मुलाजमा अभी भी वैसे ही खड़ी थी। वो इसकी बेचैनी को भांप गई, सो अब इसकी तरफ रुक करके खड़ी हो जाती है। क्या हुआ साइमा, कुछ कहना चाहती हो? सब ठीक तो है? वो फुल स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कुशादा माथे पर पसीने के कतरे नुमायां थे। वो लब भींचे खुद पर जब्त कर रहा था। वो जिब्रान भाई जैसा लड़का ही डिजर्व करती है। वो बहुत नरम दिल के इंसान है। तुम होश में हो? क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चौधरी साहब के कुछ देर के बोले गए अल्फाज इसके कानों में गूंजे थे। वो दाएं बाएं देखकर गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतार लेता है। और कुछ नहीं तो कम से कम इस बात की ही हया कर लेते कि वो तुम्हारी बीवी है। तुम इस निगाह को मानो या ना मानो, ये सच है कि वो तुम्हारी बीवी है। इसकी आंखें हद से ज्यादा सुर्ख हो गई थी। अफसोस, तुमने अपनी इज्जत, अपनी शरीकी हयात, अपनी बीवी की इज्जत अपने वाहियात दोस्तों में नीलाम कर दी। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी जिब्रान। जिब्रान की आंखों के आगे बार बार नमी आ रही थी, जिससे वो दाएं हाथ से बार बार रगड़ता गाड़ी भगा रहा था। मैं बहुत हैरान हूँ, कोई बाप इतनी भी नफरत कर सकता है अपनी बेटी से? मुझे तरस आता है पाकीज़ा पर। वो बहुत मासूम है। आज जोहान ने उसे कमरे में बंद कर दिया। वो सुबह से भूखी है। जिब्रान, वो बेचारी 2 दिन से भूखी है, तुम्हें एहसास है? छोड़े मुझे। आ नहीं। इसे ड्राइव करना बेहाल हो रहा था। खुद अजीती की तेज लहर इसे अंदर से झंझोड़ रही थी। न जाने किस किस के जुमले इसके कानों में गड़बड़ हो चुके थे। इसका चेहरा जब्त करने के चक्करों में हद से ज्यादा सुर्ख हो गया था। वो एक झटके से कार को ब्रेक लगाता। वो इस वक्त चंदा बाई के कोठे के सामने था। वह बड़ी हिम्मत से कार से निकला था। पूरा जिस्म हरकत करने से इंकारी था, पर फिर भी वो खुद को घसीटकर स्वहाश के अड्डे पर लाया था। एक मासूम बेकसूर जान इसकी वजह से आज इस अड्डे में मौजूद थी। वो लब सख्ती से भींच लेता। अभी तक वो लड़के पाकीज़ा को अड्डे में छोड़ गए होंगे, यही सोचकर वो सीधा यहाँ आया था। वो बड़ी हिम्मत से मर्दाना कदम चलता पहली बार इस दहलीज को पार कर गया था। हर तरफ रंग बाबू का आलम था। नई नई लड़कियां रंग बिरंगे अजीब किस्म के लिबास पहने दावत नजारा बनी हुई थी। अमीर बापों के बिगड़े बेटे अक्सर यहीं पाए जाते थे। एक लड़की जिब्रान को देखकर बड़ी अदा से उसकी तरफ बढ़ी थी। इसमें ब्लैक नेट का मगरबी तर्ज में घुटनों तक आता टॉप पहना हुआ था, जिसमें इसका आधा जिस्म रहना था। मुझे देखो, अपनी तलाश भूल जाओगे प्रिंस चार्मिंग, लड़की जिब्रान के सामने आकर कहती है, जिस पर जिब्रान बेध्यानी में इसकी तरफ दिखता है। वो बेबाकी से मुस्कुरा रही थी। जिब्रान फौरन से नजरें हट फेर लेता है। इस लड़की को अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी, क्योंकि वो यहाँ की सबसे खूबसूरत और महंगी लड़की थी, जिसके ख्वाब तो सब देखते हैं, पर हासिल सिर्फ पैसे वाले ही करते थे। जिब्रान वहाँ से जाने लगता है कि वो लड़की जिब्रान का हाथ थाम लेती है। माना तुम यहाँ नए लगते हो, शायद इसलिए शर्म आ गए, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सारी शर्म। वो भी भूल ही रही थी कि जब जिब्रान पलटकर उसकी गर्दन में दबोच लेता है। इसके हलक से कराह निकली थी। अपनी औकात में रहो घटिया लड़की, वरना तुम्हारे इस नापाक बदसूरत वजूद को यहीं जमीन में धंसा दूंगा। इसकी दाढ़ में वार्निंग थी। सामने वाली लड़की पूरे वजूद समेत कांप गई थी। तुम्हारी मालिक कहाँ है? अब वो खुद इसे दूर धकेल कर हाथ झाड़ कर पूछ रहा था। वो यहाँ। वो कपकपा कर बोली थी। जिब्रान की गुस्से और तकलीफ से सुर्ख होती आंखें किसी को भी कपकपाने पर मजबूर कर सकती थी। जिब्रान इस पर से दूसरी नजर डाले बगैर दूसरी तरफ चल पड़ा। वो लड़की से दूर जाता देख रही थी। क्या हुआ राहत, सब ठीक तो है? राहत की होंकों जैसी शक्ल देखकर उसकी दोस्त उसके पास आई थी। सलमा, मैं यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। हाँ, क्यों, क्या तुम्हें कोई शक है? राहत की बात पर सलमा कंधे झुकाकर कहती है। अगर कोई शक है तो जरा पैसे कम वाले लोगों पर राजी होकर देख, तेरे हुस्न की कसीदे पढ़ते पढ़ते पूरी रात गुजार देंगे। सलमा आखिर में आंख दबाकर कहती कह लगा गई थी, पर राहत नहीं हंसी थी। इसकी नजर जिब्रान काजी की पुश्त पर थी, जो इसे बदसूरत, घटिया और न जाने क्या क्या कह कर गया था। ये पहला इंसान था जिसने इसे दूसरी मर्तबा देखना भी गवारा नहीं किया। इसे बेसाख्ता जोहान अफरीदी याद आया था।
इसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दे, खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। और हाँ, वो दूसरा आदमी नई लड़की को लेकर गया है, वो भी देख ले, जिंदा ही है ना। आखिरी बात पर वो कहा लगा गई थी। चंदाबाई ने मुंह में बांध दिया हुआ था, जैसे वो बार बार अपने पास पड़े बर्तन में थूक रही थी। वो इस वक्त सफेद रंग की साड़ी में थी। इसने बालों का जूड़ा बनाकर इसमें एक सुर्ख गुलाब लगाया हुआ था। जिब्रान अंदर दाखिल होता तो पान की बदबू का भभोका इसके नाक से टकराता। वो दाएं हाथ में लहरा कर बदबू का असर जाहिर कर रहा था। तो गुस्से से इसके माथे और गर्दन की शरियानें फूल जाती हैं। आइए आइए चौधरी साहब। चंदाबाई एक नज़र में ही चौधरी जिब्रान काज़मी को पहचान गई थी। इसका लंबा मजबूत वजूद, रोबोदब और चेहरे के मगरूर नक्कोश इसके बिन बताए ही इसका तारुफ करवा रहे थे। वो अपनी जगह से उछलकर खड़ी हो गई। जिब्रान पहले ही इस औरत को, फिर इसके साथ खड़े दोनों आदमियों को दिखता है। चौधरी साहब, आप बताएं, आपके लिए क्या मंगवाएं? जूस, शराब या शबाब? इसके आखिरी अल्फाज बेमानी थे। जिब्रान का दिमाग घूम जाता है। कुछ देर पहले यहाँ जो लड़की आई है वो कहाँ है? वह बड़े जब्त से पूछ रहा था। चंदाबाई नासमझी से उसे देखती, फिर माथा से लाकर पीछे खड़ी आदमी को देखती है। वो ऊपर कमरे में है। इस आदमी के अल्फाज जिब्रान के चेहरे के रंग बदल गए थे। वह यहाँ आया तो था, लेकिन इसकी दुआ थी कि वह पाकीज़ा इस गंदी सी बुरी सी जगह पर ना हो। पर होनी को कौन टाल सकता है, और इसके साथ वो लड़का भी। ऊपर कहाँ है वो कमरा? वो उसकी बात पर अंदर ही काट कर दाड़ा था। फिर साथ ही बाहर की तरफ भागा। चंदाबाई और वो दो आदमी दोनों नासमझी से जिब्रान के पीछे भागे। जिब्रान ऊपर पहुंचा तो पीछे आदमी को देखा। कौन सा कमरा? इसकी जुबान पहली बार लड़खड़ाई थी। आंखों में वाज़िया खौफ था कि वो तीसरा, पर आप इस तरह नहीं। वो आदमी हाँफता हुआ बोला कि एक बार फिर जिब्रान इसकी बात को इग्नोर करता तीसरे कमरे की तरफ भागा। इससे पहले वो दरवाज़ा तोड़ता अंदर से दरवाज़ा खोलकर एक लड़का बाहर आया। इसके चेहरे पर सरसारी की चमक थी, लेकिन वो जिब्रान को देखकर हैरान हुआ था। जिब्रान दूसरे ही पल इसका कॉलर थाम कर जोरदार पंच इसकी नाक पर मारता है। वह लड़का तकलीफ से दोहरा हो जाता है। ये मंजर देख के चंदाबाई के चारों तरफ रोशन हो गए थे। वो हड़बड़ाती आंखों के इनके पीछे आई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? आज छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? वो लड़का तकलीफ से चीखा। चौधरी साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़ दे इस बेचारे को, मैं आपको इस लड़की से अच्छी दूंगी, बिल्कुल अनछुई। चंदाबाई जितना समझ चुकी थी उस हिसाब से बोली। जिब्रान जख्मी शेर की तरह लग रहा था। अलबत्ता कोई इसकी आंखों पर गौर करता तब वहाँ आंसू थे, कुछ खोने के, बेबसी के, तकलीफ के। वो इस लड़के को अच्छा खासा जख्मी करके वही राहदारी में फेंकता। गहरे सांस ले रहा था। आसपास से सब लोग कमरों से बाहर आ गए थे। अब जिब्रान की हिम्मत नहीं हो रही थी कमरे में दाखिल होने की। मजबूत जिस्म शियाल से कांप रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे भी फट जाएगा। काश अंदर मौजूद लड़की पाकीज़ा ना हो। इसका दिल यही सीधा दे रहा था। अल्लाह मुझे माफ कर, मुझ पर रहम कर। इसके लब पहली बार सिसके थे। वो सुर्ख चेहरे समेत आंखें मीच कर दोबारा खोलता, जैसे खुद में हिम्मत पैदा कर रहा था। इसने दायां हाथ दरवाजे पर रखा था। चढ़ की आवाज से दरवाजा खुला। धक धक धक। इसका दिल सीने से बाहर आने को था। मर्दाना कदमों के साथ वो अंदर दाखिल हुआ था। वो सामने ही थी, खुले बाल, बिखरा सरापा, लट्ठे की तरह सफेद पड़ता चेहरा। बेसाख्ता ही जिब्रान के लब नीमा हो गए। बाएं आंख से एक आंसू टूट कर गिरा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, उसके लिए भी नहीं रुकी थी। चारों में से एक लड़का आगे बढ़कर पाकीज़ा को उठाने लगता है कि अचानक पुलिस सायरन की आवाज इनके कानों से टकराई। वो चारों हड़बड़ाकर एक दूसरे को देखते हैं। ये पुलिस को किसने बुलाया है? वो सब हैरान थे। कहीं जिब्रान ने हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेला? पहला लड़का सर थाम कर रह जाता है। क्या मतलब? चौथा लड़का भी हैरान था। ये लड़की ना जाने कौन है। अगर इसके मामले में हम पिस गए तो हमें कोई नहीं बचा सकेगा। सायरन की आवाजें तेज हो गई। हमें जिब्रान को फोन करना चाहिए। दूसरा बुखला कर फोन उठाता है। तुम पागल हो? इतना टाइम नहीं है हमारे पास। पहला लड़का धीमी आवाज में घुराता। बहस में वक्त जाया करने से बेहतर है हम पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाए। तीसरा लड़का सबको झिझोड़कर होश दिलाता चीखा था। सब होश में आते पिछले दरवाजे की तरफ भागे थे। पीछे पूरा कमरा एक बार फिर खाली हो गया था। जहाजी साइज बेड पर पाकीज़ा अपनी आबरू, अपनी पाकीज़गी, अपनी मासूमियत समेत बेहोश पड़ी थी। भारी बूटों की आवाज करीब आ रही थी। धम से दरवाजा खुला। चौधरी रहमान काज़मी अंदर की तरफ भागे थे। पीछे पुलिस के दो मेंबरान भी अंदर दाखिल हुए थे। पाकीज़ा को सही सलामत देखकर इनके सीने से तशक्कुर का सुकून खारिज हुआ। सांस खारिज हुआ। वही सामने पड़े सोफे पर ढह जाते हैं। इनकी आंखें नम थी। सुकून की एक लहर इनके अंदर तक लक उतरी थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, बेशक तेरे सिवा कोई इज्जतों का मुहाफिज नहीं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सब पुलिस वाले आस पास तलाशी ले रहे थे। सर, यहाँ कोई नहीं है। सर, शायद वो लोग पिछले दरवाजे से भाग गए। पुलिस के सिपाही अंदर दाखिल हुए थे। एएसपी राशिद इस बात में सर हिलाए। कोई उनका पता चल ही जाएगा। चौधरी साहब, हमें इनको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, ये बेहोश है। एएसपी की बात पर चौधरी साहब इस बात में सर हिलाकर गहरा सांस भरते खड़े हुए थे।
जिब्रान की सारी बात सुनकर उसे अच्छी खासी सुनाने के बाद पुलिस को फोन करते हैं। खुद ही जल्द फार्म हाउस की तरफ निकले थे। अभी ने जिब्रान की फिक्र हो रही थी, ना जाने वो कहाँ होगा। वो जेब से फोन निकाल कर उसे कॉल मिलाते हैं, फोन कान को लगाते हैं। खामोश फिजा में मोबाइल की ट्यून बजी। इसके शल वजूद में हल्की सी हरकत हुई थी। वो शल सी कैफियत में ही जेब से फोन निकाल कर कान को लगाता है। जिब्रान, पाकीज़ा में मिल गई। अल्फाज थे या जिंदगी की नवीद, इसकी दोनों शल आंखें एक साथ छलक गई। वो मर्दाना वजाहत का शाहकार, मजबूत जिसामत, मगरूर नकुश वाला चेहरा। चौधरी सामने खड़ी लड़की को हैरत से देख रही थी। वो कोई और थी, ना जाने कौन थी। जिब्रान की आंखें अब झुक गई थी। पहले इसकी आंखें पथरा गई थी, अब बल्कि वो खुद पथरा गया था। इसे रब के इस करम पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब चौधरी साहब की कॉल पर वो होश में आया था। वो उल्टे कदम बाहर निकल आया। सब इसका ये रूप भी हैरत से देख रहे थे। कुछ देर पहले वो भफरा शेर बना हुआ था, जैसे वो हर शय तबाह कर देगा, पर अब वो बिल्कुल खामोश था। वो जिसके पास से भी गुजर रहा था, वो पलट कर उसे जाता देख रहा था। अचानक वो सीढ़ियों के दहाने पर रुका। इसने अपना सर झुकाया, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो सुर्ख आंखों से आसमान को देखता। बेशक इज्जत और जिल्लत उस खुदा के ही इख्तियार में है। इसके अंदर से आवाज आई थी। वो पूरे कद समेत वहीं सीढ़ियों के दहाने पर सजदे में गिर गया था। इसे कुछ याद नहीं था कि किबला किस रुख है या कौन सी जगह है। वो बस खुदा के इस मोजज़े पर ये बेयकीन था। इसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। अच्छा, ये वाला ना सलाह सिकंदर से ना कॉपी किया हुआ लग रहा है ना, लेकिन अच्छा है नॉवल भी। ये नॉवल भी अच्छा है। वो किस तरह किस अंदाज में अपने रब का शुक्र अदा करे से कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस आंखें रो रही थी और लब खामोश थे। वहां मौजूद सब लोगों के मुंह खुल गए। चंदा बाई का हाथ बेयकीनी से मुंह तक गया था। वो इंसान किस नापाक जगह पर अल्लाह से हम कलाम हुआ था। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ। तेरे इस करम पर तेरा कैसे शुक्र अदा करूँ। वो बेशक तेरी इज्जतों का रखवाला है। वो गिड़गिड़ा रहा था। सब इसे देख रहे थे। एक तक राहत इसके बिल्कुल सामने थी। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई थी। इससे कुछ देर पहले ही जुहान की मौत की खबर मिली थी। वो उदास थी, गमगीन थी, लेकिन अब वो जिब्रान को इस नापाक जगह पर खुदा के सामने गिड़गिड़ाता देख रही थी। बेसाख्ता ही इसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल भी यही किया कि खुदा के सामने रोए, गिड़गिड़ाए। वो किस दोज़ख में फंस गई थी। बेशक वो एक ख्वाहिश थी, लेकिन हर लड़की की तरह इसकी भी ख्वाहिश थी कि वो अपना घर बसाए, कोई इससे भी इज्जत से निकाह करे। इसे सिर्फ जुहान से यही उम्मीद थी, पर अब तो वो मर गया। वो भी जी के क्या करेगी। लोगों के दिल बहलाएगी या फिर कई बसे बसाए घर उजाड़ेगी, जैसे इसने रूसा का उजाड़ा। अरीज बेगम हाथ में पकड़ी तस्वीर के दाने घुमाते हुए कुछ पढ़ रही थी। सामने फालिज़ादा चौधरी शुजाअत अफरीदी अस्पताल के बेड पर पड़े थे। अरीज बेगम की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर पहले इन पर एक नहीं दो क़यामतें टूटी थी। वो अपनी मुलाजमा से पूछ ही रही थी कि नीचे से दूसरी मुलाजमा भाग ही आई। इसके हाथ में खून था। जुहान की मौत की खबर इन पर बिजली बनकर टूटी थी। वो जैसा भी था, इनका इकलौता बेटा था। वो मुंह पर हाथ रखे वहीं बेड पर बैठ गई। 2 दिन तक जुहान की लाश पाकिस्तान आनी थी। वो भी संभली नहीं थी कि मुलाजमा ने इन्हें चौधरी शुजाअत काजी की हालत के बारे में भी आगाह कर दिया। गम से इनका दिल फट जाता अगर इनके दिल में अल्लाह मोहब्बत या अल्लाह का सहारा न होता। वो बड़ी हिम्मत से अपने सरताज के सहारा आने बैठे इन पर पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। डॉक्टर ने बताया था कि इनको फालिज का मेजर अटैक हुआ है। अब वो सारी जिंदगी बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे। चौधरी साहब को भी होश नहीं आई थी। जिब्रान कासमी अस्पताल की राहदारी में चला रहा था। सामने ही चौधरी शुजाअत अफरीदी खड़े थे। वो अपने बेटे की हालत देखकर उसकी तरफ आए थे। जिब्रान इनका सहारा पाते ही इनके गले लग गया था। बाबा साईं, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरा हूँ। वो अब रो नहीं रहा था, बस अपने किए पर शर्मिंदा था। चौधरी साहब इसे खुद से जुदा करके इसके कंधा थपथपाए थे। अल्लाह ने तुम पर करम किया है। खब जिब्रान, जो भी है यार, नाम ही चेंज कर देते हैं 2 मिनट में। जिब्रान, हाँ, खबरान लिखा हुआ है। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कुछ गलत नहीं हुआ, और माफ़ी मांगनी है तो पाकीज़ा से मांगो, मुझसे नहीं। यार, अगर आप लोगों को ना वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। मैं चाहती हूँ मेरा चैनल जल्दी सब मतलब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई हो जाए। मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरा सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। 90% आवाम जो है बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस देख रही है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों के एक सब्सक्राइब के बटन से मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। शुक्रिया। अल्लाह ने तुम पर करम किया है। माकीज़ा का नाम सुनकर इसका दिल धड़का था। इसकी आंखें इसका चेहरा देखने को तड़पी थी। जिब्रान को साथ लिए ही वो खुद पाकीज़ा के रूम की तरफ बढ़े थे। डॉक्टर कमरे से बाहर निकल रहा था। जिब्रान बेसाख्ता ही इसकी तरफ बढ़ा था। क्या हुआ डॉक्टर, वो कैसी है? डॉक्टर का उतरा हुआ चेहरा देखकर जिब्रान परेशान हुआ। वो कोमा में चली गई है। इनके सर के पिछले वाले हिस्से पर अंदरूनी गहरी चोट आई है। वो बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए सर्वाइव नहीं कर पा रही और कोमा में चली गई हैं। चौधरी साहब ने जिब्रान के कंधे पर हाथ रखकर हौसला दिया।
وہ اب ہوش میں کب آئے گی؟ چودھری صاحب خود ڈاکٹر سے مخاطب ہوئے۔ کچھ نہیں کہہ سکتے، 2 دن، 3 ماہ، 1 سال یا… ڈاکٹر کا آدھا ادھورا جملہ جبران چودھری صاحب کو سب سمجھ آ گیا تھا۔ ہاں، اگر وہ خود چاہیں تو جلدی ہوش میں آ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دے کر خود وہاں سے چلا گیا۔ مکافات عمل انسان کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ ظالم مظلوم پر جتنی مرضی ظلم کرتا ہے، پر ظلم کی رسی زیادہ دراز نہیں رہتی۔ اللہ جب چاہے وہ رسی پکڑ لیتا ہے، پھر ظلم اپنے کیے پر خود ہی پھنس جاتا ہے، اور ایسا پھنستا ہے کہ دنیا اس کا تماشا دیکھتی ہے۔ جیسے چودھری شجاعت افریدی کا تماشا دنیا نے دیکھا، جیسے جوہان افریدی دردناک موت مرا، یا جیسے راحت نے اسی کوٹھے میں سے کود کر خودکشی کر لی جہاں وہ پوری عمر طوائف بن کر فحش کام کرتی رہی۔ اور جبران، وہ خود نکلا تھا اپنی بہن کا بدلہ لینے، یہ بھول کر کہ خدا اوپر بیٹھا سب دیکھ رہا ہے، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، لیکن اس میں جذباتیت میں آ کر ایک معصوم جان پر بے جا ظلم کیا اور اس کی سزا بھی پا لی۔ پاکیزہ سے 2 سال کی جدائی پا کر، ان 2 سالوں میں اس نے پاکیزہ سے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ وہ اس کی طلب میں پل پل تڑپا تھا۔ اندھیرا، وال کلاک کی آوازیں، ٹک ٹک ٹک۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی تھی۔ وہ پھر سے آنکھیں موڑ لیتی۔ پاکیزہ، میری پاکیزہ، وہ مدھم سی کانپتی آواز میں اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ ایک بار پھر سے آہستہ آنکھیں کھولتی۔ اس بار روشنی نے زیادہ تکلیف نہیں دی تھی۔ پھر اسے پکارا گیا تھا۔ اس نے بامشکل اپنی نظریں دائیں جانب موڑی تھی۔ وہاں کوئی تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی چمکی تھی۔ پاکیزہ نے پلکیں جھپک کر پھر اسے دیکھا۔ ماتھے پر بکھرے بال، مغرور نقوش، گہری مونچھ اور ساتھ گہری داڑھی۔ وہ کافی بدل گیا تھا۔ وہ کالے رنگ کی کاٹن شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا جس پر بے تحاشا بل پڑے ہوئے تھے۔ اس کے کندھے پر اسکن شال لٹک رہی تھی۔ وہ بکھرے حال میں تھا اور بس اسے تک رہا تھا۔ یک ٹک اس کے چہرے پر وہ تمکن نہیں تھی جو ہر وقت نظر آتی تھی۔ سامنے والا اس کی آنکھوں کے سرد سوند سے خوفزدہ ہو جاتا، پر اب ایسا نہیں تھا۔ صحرا کی مانند پیاسی نگاہوں سے پاکیزہ کی کالی سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ جبران کے لب ہلے تھے۔ مجھ پر یہ ظلم مت کرے جبران۔ گزرے وقت میں کہے جملے وہیں کہیں گونجے تھے۔ 2 سال، 1 مہینہ، 3 دن اور پھر 13 گھنٹے گزارنے کے بعد اب 1:45 پر تم نے آنکھیں کھولی ہیں۔ 2 سال، 1 مہینہ، میں تم سے… وہ خود پر ضبط کرتا، سر اٹھا کر واپس اس کی نم ہوتی آنکھوں میں دیکھتا۔ لفظ ختم ہو گئے تھے۔ جبران کاظمی، چھوڑے مجھے، میں نے کہا۔ ہاں، چھوڑے۔ تم خاموشی سے اس وقت صرف میری طلب پوری کرو۔ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرو پاکیزہ، اب یہ ممکن نہیں۔ مجھے جانے دیں، مجھ پر رحم کریں۔ ابھی یہ شروعات ہے پاکیزہ افریدی، تم بس دیکھتی جاؤ۔ آگے میں تمہارے ساتھ کیا کیا کروں گا۔ میں تمہیں اس مقام پر کھڑا کر دوں گا کہ موت کو قریب سے دیکھو گی۔ نہ، نہیں، دور رہو مجھ سے، چھوڑو مجھے۔ جبران، سائیں۔ گزرے وقت کے اذیت ناک لمحے دونوں کو ایک ساتھ یاد آئے تھے۔ پاکیزہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک کر کن پٹی میں جذب ہو گئے۔ جبران کی آنکھیں بھی بے ساختہ ہی چھلکی تھی۔ وہ جانتا تھا جو وہ کر چکا ہے اس کی معافی سے کبھی نہیں ملے گی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کے نام ہو گئے۔ وہ سر جھکا کر اس کے سامنے سے دونوں ہاتھ جوڑ دیتا۔ یہ منظر پاکیزہ کے لب سسکا گئے۔ اس کے خشک لب واہ ہوئے تھے۔ جبران اب وہاں رکا نہیں تھا۔ پاکیزہ اسے باہر نکلتے دیکھ رہی تھی۔ جبران، اس کے لبوں سے دھیمی آواز نکلی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹرز بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ شاید جبران نے ڈاکٹرز کو بھیجا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب پاکیزہ کے پاس آ گئے۔ عریض بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اپنی بچی کو بار بار سر چوم رہی تھی۔ چودھری شجاعت افریدی بھی اپنی ویل چیئر پر بیٹھے نم آنکھوں سے پاکیزہ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا بایاں حصہ فالج زدہ تھا، منہ بھی ٹیڑھا تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر پاکیزہ رونے لگی۔ چودھری رحمان کاظمی بھی اس کے سر پر پیار دے کر اس کا حال پوچھ رہے تھے۔ وہاں سب تھے سوائے اس کے۔ وہ وہاں سے ایسا گیا تھا کہ واپس نہیں پلٹا تھا۔ آج اسے گھر آئے 5واں دن تھا۔ وہ اپنے گھر آئی تھی۔ وہ وجود 2 سالوں میں ایک پل اس کے پاس رہا تھا۔ آج 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے۔ وہ اس سے نہیں ملنے آیا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی۔ اس نے گرے رنگ کی سادہ شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ سفید دودھیا رنگت، سرخ رنگت میں زردی مل گئی تھی۔ خوبصورت آنکھوں تلے ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ گلابی لب خشک تھے۔ وہ صدیوں کی بیمار لگتی تھی۔ ہاں، البتہ بال اس کے کمر تک لمبے ہو گئے تھے۔ وہ اپنا سر جھٹک کر بالوں کو ہلکا سا فولڈ کر کے کیچر لگا لیتی، پھر سامنے سے ڈریسنگ پر اپنا ٹوٹ کر گرے بالوں کو دیکھتی۔ اس کا دل برا ہوا تھا، لیکن خیر وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا، یہ بھی ہو جائے گی۔ اس نے یہ صرف سوچا تھا۔ دروازے پہ ہلکی سی آواز ہوئی تھی۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے کے دروازے کو دیکھتی ہے۔ دروازہ کھول کر کوئی وجود اندر آیا۔ اس کے ہاتھ سے ہر برش چھوٹ گیا۔ وہ جبران تھا، جبران کاظمی۔ اسکن پینٹ پر بلیک شرٹ، اوپر اسکن کوٹ پہنے وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ شہر سے سیدھا یہیں آیا تھا۔
इसे देखकर पाकीज़ा के हाथ पांव फूल गए। जिब्रान सपाट चेहरे से इसे वहीं रुक कर देख रहा था, अलबत्ता आंखों में वही तड़प थी, वही तलब थी। इन 2 सालों में क्या कुछ हुआ, कौन कौन उससे मिलाया, क्या क्या बात की, इसे कुछ याद नहीं था सिवाय जिब्रान काज़मी के। इन 2 सालों में इसकी हर मुलाकात, हर बात उसे याद थी, बस वही तो याद थी। वो कब कब रोया, कब कब माफ़ी मांगी, कब तक इसके सरखाने बैठा उसे तकता रहा, उसे सब याद था। पाकीज़ा ने अब इसका चेहरा गौर से देखा था। वो गहरी दाढ़ी मूंछ की वजह से और रौबदार और मगरूर लग रहा था। पाकीज़ा अपना हाथ अख्तर करते उसे नजरें चुरा लेती है। जिब्रान अपने खुद को कंपोज करता अब इसकी तरफ बढ़ा था। जिब्रान इसके बिल्कुल सामने आकर रुका था। इसका नाजुक सा सिरापा इसके छोटे वजूद के पीछे छुप सा गया था। जिब्रान हाथ बढ़ाकर उसका बाजू थामता। पाकीज़ा इसके लम्स पर सर उठाकर उसे देखती है। जिब्रान इसकी आंखों में देखता है, इसे साथ लिए बेड के पास लाता है, फिर वहां इसे बिठा देता है। पाकीज़ा नातमझी से इसके चेहरे को देख रही थी जो बिल्कुल सपाट था। वो इसे बेड पर बिठाकर खुद जमीन पर बैठ जाता है। इसकी हरकत पर पाकीज़ा के लब वाह हुए थे। इससे पहले वो कुछ कहती, जिब्रान आहिस्ता से इसकी गोद में सर रख देता है। पाकीज़ा वहीं शल हो गई। जिब्रान के चेहरे का रुख दाएं जानिब था। पाकीज़ा को इसका चेहरा सिर्फ आधा नजर आ रहा था। पाकीज़ा, मेरी जिंदगी, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मेरा गुनाह काबिल माफ़ी नहीं। तुम्हारा दिल तो बहुत प्यारा है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, तुम्हारी नाराज़गी नहीं देख सकता, मुझे माफ़ कर दो। एक पल में इसकी आंखें नम हो गई थी। ऐसे मत कहीं साईं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, पाकीज़ा तड़प कर बोली थी। इसकी बात पर जिब्रान इसकी गोद से सर उठाकर इसका चेहरा देखता है। क्या इसने सही सुना था? पाकीज़ा इसका चेहरा देखती जो आंसू से भीग चुका था। जिब्रान साहब, मैंने आपको माफ़ किया, प्लीज़ आप रोएं नहीं। पाकीज़ा अपनी मखरूती उंगलियों से इसके चेहरे से आंसू साफ करती। इसकी उंगलियों का ठंडा लम्स पाकर वो एक पल के लिए आंखें मूंद कर खोलता है। शहद रंग आंखें सुर्ख होकर मजीद नशीली लग रही थी। जिब्रान इसके दोनों हाथ बारी बारी चुमता। पाकीज़ा इसके लम्स पर कांप गई थी। अब वो इसके हाथों को आंखों से लगा गया था। पाकीज़ा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, और कसम से मैंने उसकी सज़ा पा ली है। तुमसे 2 साल दूर रहकर पल पल तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। ये 2 साल 2 सदियों की मानद गुजारे हैं मैंने। जिब्रान बोल रहा था, इसकी आवाज़ भीगी हुई थी, इसकी आंखें नम थी। पाकीज़ा की आंखें बरस रही थी। वो यकदम जिब्रान का चेहरा देख रही थी, उसकी दीवानगी देख रही थी। तुम अगर अब भी ना उठती तो मैं मर जाता पाकीज़ा। जिब्रान की बात पर पाकीज़ा इसके लबों पर हाथ रखती। जरा खामोश हो जाएं, आपके अल्फाज मुझे तकलीफ दे रहे हैं, वो सिसक कर बोली थी। इन 2 सालों में आपने जितनी मेरे साथ बातें की मुझे सब याद है। आपका माफ़ी मांगना, मेरे लिए गिड़गिड़ाना, मुझे सब याद है जिब्रान साईं, सब याद है। वो इसकी आंखों में देखती हुई बता रही थी। जब आप रोते थे ना तो मेरा दिल फटता था, मेरा बस नहीं चलता था कि आपको उठकर चुप करवा दूं, आपके सामने हाथ जोड़ूं कि खुदा के लिए मुझे मत आजमाएं, मेरा दिल फट जाएगा, मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती। वो रो पड़ी थी। जिब्रान जमीन से उठकर खड़ा हुआ था, साथ ही इसका बाजू थाम कर इसे भी खड़ा करता अपने सीने से लगा गया। 2 सालों से जलते सीने को अब जाकर सुकून मिला था। जिब्रान साहब, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, आप लोग मेरे अपने हैं, अपनों से भला कौन नाराज होता है, मेरे साथ जो हुआ मेरे नसीब में लिखा था। वो इसके सीने से लगी ही बोल रही थी। जिब्रान इसे खुद से जुदा करता उसका चेहरा देखता है। पाकीज़ा, तुम काबिल मोहब्बत हो, काबिल इज्जत हो, तुम्हारे लिए सब छोड़ा जा सकता है, तुम्हारे लिए नंगे पाँव गैरम सहरा पार किया जा सकता है, तुम्हारे लिए मरा जा सकता है, तुम बदनसीब नहीं हो सकती। जिब्रान इसके सर के साथ सर टिका गया। जिब्रान साईं, मुझे कभी खुद से दूर मत करिएगा। पाकीज़ा ना जाने किस एहसास के तहत बोली थी, कभी भी नहीं। इन दोनों ने भी सर जोड़ा हुआ था, अलबत्ता आंखें भी दोनों की बंद थी। मेरी बेटी को सुकून नहीं है, और मुझ पर कभी गुस्सा भी मत करिएगा, आप ऊंची आवाज़ से, मुझे डर लगता है। इसकी आखिरी बात पर जिब्रान के लब मुस्कुराए थे। कभी नहीं करूंगा, पक्का वादा। दोनों ने आंखें खोलकर एक दूसरे को देखा था। दोनों का चेहरा रोने के बाद सुर्ख हो गया था, आंखें अभी भी नम थी दोनों की। पाकीज़ा जिब्रान का सुर्ख होता नाक देखकर मुस्कुराई थी। पाकीज़ा के लबों की मुस्कुराहट बहुत दिलकश थी। वो खुद साथ था पैर दिलकश थी। वो उसकी महरम थी, इसकी बीवी। जिब्रान के दिल ने गवाही दी थी। जिब्रान पूरे हक से इसके दिलकश लबों पर झुका था। जिब्रान का लम्स पाकीज़ा को आंखें बंद करने पर मजबूर कर गया था। उसके लम्स में नरमी थी। जिब्रान इससे दूर हुआ था। पाकीज़ा का चेहरा ब्लश कर रहा था। इसने अपनी पलकें झुका ली थी। इसकी हया, इसकी मासूमियत, इसका दिलकश हुस्न जिब्रान को चारों शाने चत कर गया था। पाकीज़ा, जिब्रान का आदमी, तैयार हो जाओ मेरी होने के लिए। मैं सदियों से तुम्हारा तलबगार हूँ, इतनी जल्दी रिहाई नहीं दूंगा। जिब्रान ने इसके कान के पास झुककर सरगोशी की थी। इसकी सरगोशी पर पाकीज़ा सहता पाँव कांप गई थी। जिब्रान करीब से इसका चेहरा देखता
जिंदगी भर साथ दोगी? जिब्रान हाथ आगे फैलाकर पूछ रहा था। पाकीज़ा आंखें उठाकर उसे देखती है। मैं ऐसे नहीं, पहले आपको मुझे इज्जत से यहाँ से रुखसत करवा कर ले जाना है, फिर या पाकीज़ा सिर्फ आपकी। पाकीज़ा शरारत से लब दबाकर कहती है, जिस पर जिब्रान भी हंसकर सीने पर हाथ रखता और हल्का सा आगे को झुककर की बात का एहतराम करता है। जैसा आप चाहें पाकीज़ा अफरीदी, अब इस जिब्रान काज़मी की जान आपकी मुट्ठी में है। पाकीज़ा खिलखिलाकर हंस पड़ती है, फिर उसके बड़े हुए हाथ में अपना हाथ थमा देती है। जब बात नामुमकिनात में आती है तो बस ये आयत याद कर लिया करो, और बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और इंशाअल्लाह आप लोगों को ये नावल पसंद आएगा, और इंशाअल्लाह मेरा भी चैनल सब्सक्राइबर्स की लिस्ट में आएगा, मैं भी तरक्की करूँगी इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।